राम 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 राम
Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama Rama Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram Rama 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 Ram श्री राम नाम संकीर्तन की जय राम 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 சித்தாபதே பஜனை பண்ணலாம் சித்தாபதே ராம 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 ராம் 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 ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम हर हर नम पार्वती पदये हर हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय आंजनेय स्वामी की जय सद्गुरु महाराज की जय सकल साधु मुनि की जय प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமனுடைய பூர்ண அனுக்கிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய ஸ்ரவண யக்ஞத்தில் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் நம்ம மூலப்பாராயணம் பண்ணுறோம். இந்த வால்மீகி ராமாயணம் மூலப்பாராயணம் ரொம்ப விசேஷம். அதில் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணுறோம். சுந்தரகாண்ட பாராயணன்றதே ரொம்ப விசேஷம். மகான்கள்லாம் எல்லாமே முதல் ராமாயணம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் எடுத்து வைக்கிறது சுந்தரகாண்டம் தான் எடுத்து வைப்பாங்க மகான்கள்லாம். அவர் சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ண பிறகு தான் வால்மீகி ராமாயணத்துக்குள்ளே பிரவேசிப்பாங்க. பாலகாண்டத்திலேருந்து பாராயணம் பண்ண சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சுந்தரகாண்டம் அமோகமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியது. எல்லற்ற பலன்கள், ஒவ்வொரு சர்க்கமும் பெரிய பலன்களை கொடுக்கக்கூடியது. யோசித்து பார்க்கலாம். இந்த லங்கா விஜயம் சமுத்திரத்தை தாண்டதை படித்தோம்னா நம்ம போகிற காரியம் வெற்றி அடையும். சமுத்திரன்றதுனா சம்சார சாகரத்தை கடக்கிறது. சம்சார சாகரத்தை சுலபமாக கடந்தாராம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. கோஷ்பரிக்கிருத வாராசியம், ஒரு பசுனுடைய குளம்படியில் இருக்கிற தண்ணீரை தாண்டது போல் தாண்டினாராம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அங்கே போய் என்ன பண்ணனா, மசகிக்கிருத ராட்சசம் 80,000 ராட்சரில் கொசு அடிக்கிற மாதிரி அடித்து போட்டாராம். அப்படியேப்பட்ட ஆஞ்சநேய சுவாமி நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணோம். இதில் சுந்தரகாண்டம் பூரா ஆஞ்சநேயர் சீதனுடைய பெருமை, ராமருடைய பெருமையை பறக்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது லங்கா விஜயம். அந்த லங்கையை தகனம் பண்ணுறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. இதில் என்னென்னா பேய் பிசாசு பில்லி சூனியம் போன்ற கெட்ட தோஷங்கள்லாம் விலகும். கிரக தோஷங்கள்லாம் ஏதாவது இருந்தால் செவ்வாய் தோஷம், சனி தோஷம் போன்ற, கேது ராகு போன்ற தோஷம்
ராகு தோஷம், ஏதாவது ராகு கேது போன்ற தோஷங்கள் இருந்தால், கிரக தோஷங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் கூட விலகிடுமா இந்த சுந்தரகாண்ட பாராயணத்தினால. அதை கேட்குறதுனாலையும் சரி, அதை பாராயணம் பண்ணுறதுனாலையும் சரி, அவ்வளோ பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. குடும்பத்துக்குள்ள கணவன் மனைவிக்குள்ள தம்பதிகளுக்கு ஒற்றுமை உண்டாகுமா, சோப்ராத்திருகம் சகோதரர்களுக்குள்ள ஒற்றுமை உண்டாகும், இழந்து போன பொருள் கிடைக்குமா, தொலைஞ்ச பொருள் கிடைக்குமா, தரித்திரம் விலகும். அதுபோல் இன்னும் நிறைய பலன்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லா பலன்களும் கிடைக்கும் சொல்லப்போனால். ஏன்னா இதுவே ராமாயணம் பூரா படிக்க முடியாதவங்க சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் படித்தாவே ராமாயணம் படித்த பலன் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா திருச்சட சொப்னத்திலேயே சீதையும் ராமனும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி சொப்னம் காண்றாரு அப்படியே சொல்கிற அவன். அதில் திருச்சட சொப்னத்தை திருச்சட சொப்னத்திலே பார்த்தா ராமரும் சீதையும் சேர்ந்தது மாதிரி ஆகிடுது. அப்போ அங்குலிய பிரதானம் அங்குலியம் கொடுத்த போது ராமரும் சீதையும் நேரடியாக சேர்ந்த அந்த பாவம் அங்கே வால்மீகி வர்ணிக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது தாராளமாக அது சுந்தரகாண்ட பாராயணமே, அதில் ராமர் கதை வருது, எல்லாமே வருது, அங்கேயே சீதை ராமனும் சேர்ந்துடுறாங்கன்னு தான் வருது. அப்படிங்கும்போது சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணாவே நம்மளுக்கு அந்த ராமாயணம் பாராயணம் பண்ண பலன் கிடைச்சிடும். சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணி முடிக்கும்போது பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோடு பூர்த்தி பண்ணுவாங்க. நாமளும் அப்படியே பூர்த்தி பண்ணலாம், பாராயணம் பண்ணலாம். சரி, யாராருக்கெல்லாம் என்னென்ன சங்கல்பம் இருக்கோ அதெல்லாம் சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதோட உயர்ந்த சங்கல்பம் என்னென்னா, பகவானிடத்தில் எல்லையற்ற பக்தி உண்டாகணும், ராம பக்தி உண்டாகணும், சீதாராமன் இடத்துல எல்லையற்ற பக்தி உண்டாகணும். அதை தான் கேட்டுக்கணும் மெயினாக. அந்த பக்தி சம்பாதிச்சிட்டா மற்றதெல்லாம் எல்லாம் தன்னாலே யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவான். நம்ம பாராயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். ராம 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 ராம. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய. शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीसात्यः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यः स्यूहूतं नमामि गजाननं द्वौर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिम् अयमक्षमालां तदा न हस्ते नैकेन बध्वं सिदमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण वासाकुन्तेन्दुशङ्करस्फटिकमणिनिभा वासमान असमान सामे वाक्देवदेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं अन्ते वाल्मीकि कोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोणयादि परां गतिं यः पिबन् रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमहर्मषं पशुपतिकृतवादाशिम् अशकीकृतराक्षसं रामायण महामालात्मं वन्दे अनिलात्मजम् अंशनानन्तनं वीरं जानकी शोभनाशनं कविशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यत्सोहवक्लीं जनहात्मजायाः आदाय देनैव तदा लङ्कां नमामिदं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाडलाननं काञ्चनात्रिकमणीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्तनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकञ्चलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमद राक्षसान्तकं मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अचाट्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। यः कर्णाञ्जलि सम्बडिरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दकलितं रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैः स अत्यन्त स्व उपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगत समास संधि योगं सममधुरो वनदार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसश्च वदं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरकामिनी पुनादु भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं गाण्डक्राह महामीनं वन्दे रामायणार्णवं वेदवेत्य परे पुंसि जादे दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरत्रमदले हैमे महामण्डवे मध्य पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमि सुधापुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्न वरदश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवरात् तारासुतो जाम्बवान् मत्यनीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं
नमोस्त रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्त रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्त चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः सर्वारिष्टनिवारकं शुभकरं पिङ्गाक्षमक्षावहं सीतान्वेषणतत्परं कविवरं कोड्यन्तु सूर्यप्रभं लङ्काद्वीपभयङ्करं सकलदं सुग्रीवसम्मानिदं देवेन्द्रादिसमस्तदेवविनुदं काकुस्तं तूदं भजे राम 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 ஸ்ரீ அப்ப தியான சீதாராமனுடைய பூர்ண கிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய சிவனிகள் இந்த மூலபாராயணத்தில் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் முதல் சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணுவோம். ராம 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 ராம. ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணத்தில் சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் இருந்தால் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஸ்லோகம் மூலபாராயணம் பண்ணலாம். ஆஞ்சநேய சுவாமி கடலை தாண்டுறது. அப்போ ஒரு பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து மகேந்திர பர்வத்து மேலே ஏறி அங்கேருந்து ஆகாசத்தில் தாவி போகிறார், கடலை தாண்டி போகிறார். அந்த சர்க்கம் தான் இது. அதில் வழியில் வந்து மைனாக பர்வதத்தை இடையூறு ஏற்படுது. ஆனால் இடையூறு இல்லை, மைனாக பர்வதம் பூஜை செய்ய விரும்பினது. அந்த மைனாக பர்வதத்தின் தேவதை பிரத்யட்சமாகி, அப்பா நீ வாயுதேவன் என்னுடைய நண்பன், அவருடைய புத்திரன், உனக்காக நான் உதவி செய்ய தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்ததாக சுரசை என்ற நாகமாதா தேவர்கள் வந்து பரீட்சை பண்ணுறாங்க. ஆஞ்சநேயர் வந்து உடல் பலத்தினால உன்னை ஜெயிக்கிறாரா இல்லை புத்தி பலத்தினால ஜெயிக்கிறாரா பார்க்குறாங்க. புத்தி பலத்தினால இந்த சுரசை என்ற நாகமாதா ஒரு ராட்சச ரூபம் எடுத்துன்னு வந்தால் வாய்க்குள்ளே புகுந்து வெளியே வந்துடுறாரு. என் வாய்க்குள்ளே புகணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். வாய்க்குள்ளே புகணுன்னா என்னை விழுங்குற அளவுக்கு ஒரு வாயை தரன்றாரு. அப்போது பெரிய விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார். அவளும் வாயை பெருசாக திறக்கிறா. பகவான் டக்குன்னு ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒரு கட்டவள பிரமாணமாக சின்னதாகிட்டு வாய்க்குள்ளே புகுந்து உடனே வெளியே வந்துடுறார். நீ என்ன சொன்ன, வாய்க்குள்ளே புகுந்தாலும் வெளியே வர சொன்னேன், வாயில் புகுந்து வெளியே வந்துட்டேன், உன்னுடைய கோரிக்கை நிறைவேறிச்சு, அதனால் நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லி உடனே சுரசை டக்குன்னு தேவதையாக மாறி ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்புகிறான் ஆஞ்சநேய சுவாமியை. அப்படி சுரசையை ஜெயிச்சுட்டு போகிறார். அப்புறம் சிம்மிகையை வதம் பண்ணுறார். இந்த 3 தடங்களை ஜெயிச்சு அது மாதிரி லங்கைக்குள்ளே புகுந்து லங்கினி தேவதையை ஜெயிக்கிறார். ஜெயிச்சு அது மாதிரி எதேஷ்டமாக அந்த லங்கையில் ஒரு பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்த மலை மாதிரி இருந்தால் அவர் சின்ன ஒரு பூனை அளவுக்கு சின்ன வானர் ரூபம் எடுத்துன்னு போய் அந்த லங்கைக்குள்ளே தேட பிரவேசிக்கிறார். அது அப்படியே பின்னாடி அப்படியே ஒவ்வொரு வீடாக போய் தேட ஆரம்பிக்கிறார். அங்கே லங்கையினுடைய வர்ணனைகள் அதெல்லாம் வரும். அதுக்கு பிறகு தான் வந்து ராவனுடைய அந்தப்புறத்தில் போய் தேடுறாரு, புஷ்பமானத்தில் போய் தேடுறார். ராவன் அந்தப்புறத்தில் தேடுறார். அங்கே மந்தோதரியை பார்த்து சீதைன்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் வாழை முத்தம் கொடுக்குறாரு, குதிக்கிறாரு, ஆடுறாரு, பாடுறாரு. அப்புறம் பார்த்தா இவ சீதை இல்லை, இவ யாரோ ஒரு பெண்ணு, ராவனுடைய மனைவியில் தலை சிறந்தவளாக இருக்கணும், அதான் முதல் மனைவியாக இருக்கணும். ஏன்னா அவள் தான் மந்தோதரி பார்த்தா சீதை மாதிரி அவ்வளோ அழக உடையவளாக இருக்கிறான். மகா பதிவிரத லட்சணங்கள்லாம் தெரியுது. ஆஞ்சநேயர் பார்த்துட்டார். அப்புறமா ஆஞ்சநேயர் அவளை பார்த்து சீதை நினச்சி ஏமாந்துட்டார். அப்புறமா பார்த்தா இல்லை, மந்தோதரின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அவள் கண்டிப்பாக சீதையாக இருக்க முடியாது. ஏன்னா ராமனுடைய வீட்டில் சீதை இருப்பாளாக இருக்க மாட்டான். அவர் ராமனையும் நினச்சிட்டு இருக்கிறவளாச்சு அப்படின்ட்டு போயிட்டார். அங்கேருந்து அப்படியே போய் பிரகாசத்தன் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் போய் தேடுறாரு. கும்பகர்ண வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் போய் தேடுறாரு. எங்கேயுமே சீதை காண கிடைக்காமல் அது வருத்தப்படும் போது அது பிறகுதான் நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை நமோஸ்து ருத்ரேந்திர யமானிலேப்யோ நமோஸ்து சந்திரார்க்க மருத்கணேப்யா அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி எழுந்த உடனே அசோகவனத்தை தேடாமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அசோகவனத்தில் பார்த்தா சீதை காண கிடைக்கிறாள். சீதையினுடைய தரிசனம் கிடைக்குது. அப்புறம் ராவணன் வந்து மிரட்டுறான். சீதை வந்து எவ்வளோ நல்லபடியாக மித்திரபாவேன சம்ஸ்திதா, ராமனிடத்தில் நீ சரணாகதி அடையலனா கூட பரவாயில்ல, நண்பனாவது கை கொடுத்துக்கோ, என்னை கொண்டு போய் திருப்பி கொடுத்துரு, உன்னை மன்னிச்சிடுவார், இல்லைங்கன்னா ராமருடைய பானங்கள் உங்களை ராட்சச பூண்டே இல்லாமல் வதம் பண்ணிவிடுவார், ராமருடைய பானமானது ராட்சச பூண்டே இல்லாமல் வதம் பண்ணிவிடும், அதனால்
எவ்வளோ சொல்லி பார்க்குறா சமாதானமாக. அவன் கேட்கல ராவணன். உனக்கு 2 மாதம் கெடு, அதுக்குள்ளே எனக்கு வசமாகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் உத்தரவிட்டு ராட்சசர்களை மிரட்ட சொல்லி போயிட்டான். ராட்சசர்கள்லாம் வந்து ராட்சசிகள்லாம் வந்து மிரட்டுறாங்க. ஆனாலும் சீதையானவள் எதற்கும் வசப்படலை. ராமனுடைய பெருமைகளே பேசுகிறான். அப்புறம் திருச்சடையினுடைய சொப்னத்தில் சீதை ராமனோடு சேர்றதாக சொப்னம் காண்றா. அந்த மங்களகரமான சொப்னம்லாம் காண்டோடனே அதுக்கப்புறமா கூட அவளுக்கு திருப்தி இல்லை. ஏன்னா அந்த சொப்னத்தில் தானே பார்க்குறான், நேரடியாக ராமர் ஒன்றும் பார்க்கலையேன்னு வருத்தத்தினால ராமனை நினச்சி புலம்பும்போது அப்போ அந்த சிம்சவா விருட்சத்தில் தூக்கு மாட்டிக்கு போகிறான். இனிமேல் ராமனை பிரிஞ்சு அவன் என்ன 2 மாதம் எனக்கு கெடுக்கிறது, அது வரைக்கும் நான் உயிரை பிரச்சனை இருக்க மாட்டேன், என் ராமன் இப்பொழுதே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைன்னா நான் தூக்கு மாட்டிக்கு சொல்லி சிம்சவா விருட்சத்தில் தூக்கு மாட்டிக்கு போகிறா. உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி, தசரதன்னு ஒரு மகாராஜா இருந்தார், அவருக்கு 4 புத்திரர்கள், அதில் ராமன் சிரேஷ்டமானவர், சிரேஷ்ட குண சம்பன்னர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சீதையை மனம் முடித்தார் அப்படின்னு அந்த கதையை அப்படியே ராமருடைய கதையை பூர்ணமாக சொன்னார். ராமருடைய கதை தான் மிருத சஞ்சீவினி. அதாவது என்னென்னா, செத்தவங்களையும் பிழைக்க செய்யுமா ராமனுடைய சரித்திரம். அப்படி இருக்கும்போது சாக போகிறவங்களை பிழைக்க செய்யாதா? அப்படிப்பட்ட சீதை சிம்சவா விருட்சத்தில் தூக்குமாடிக்கு போகும்போது அப்போது அந்த ராமருடைய கதையை சொன்னோன்னே அவருக்கு அமிர்தத்தை வர்ஷித்த மாதிரி இருக்கேன். இந்த இடத்துல கூட ராமர் கதையை சொல்கிறவங்க இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சுற்றி முற்றி பார்த்தா ஒரு சின்ன வடிவத்தில் ஆஞ்சநேயர் அப்படியே மரத்துலேருந்து இறங்கி வர்றார். ராட்சசிகள் கொடுமையினால் முகமெல்லாம் அப்படியே ஊதி போய் வீங்கி போய் கண்கள்லாம் கண்ணீர் மல்க, அப்படி சாப்பாடு ஆகாரம் இல்லாமல் அப்படியே எலும்பும் தோலுமாக முகம் மட்டும் வீங்கி போயிருக்கு. அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தான். பார்க்க விகாரமாக இருந்தான். சீதையை பார்த்துட்டார் ஆனால் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஆனால் ராமருடைய கதையை சொல்லி தேற்றுகிறார். அவள் இறங்கி வந்து ஒரு வானருக்கும் மனுஷனுக்கும் எப்படி சம்பந்தம் ஏற்படுதுன்னு அவள் கேட்குறா. அப்போ நடந்த விஷயம், சுக்கிரீவனுடைய சக்கியம் எப்படி ஏற்பட்டது, ஒரு வாலியினுடைய வதம் சுக்கிரீவனோட சேர்ந்தது, சுக்கிரீவன் வந்து தன் மனைவியோடு சேர்ந்து ராஜ பட்டாபிஷேகம் ஏற்பட்டது. அப்புறமா எல்லாம் 4 திக்கில் தேட புறப்பட்டது. அதில் ஆஞ்சநேய சுவாமி தெற்கு திக்கு வந்தது. எல்லா விஷயம் அவங்க சம்பாதி தரிசனம் பண்ணது. அதுக்கு பிறகு வந்து ஜாம்பவானால் தூண்டப்பட்டு தான் இங்கே வந்தது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்கிறார் ஆஞ்சநேயர். சீதை அம்மாவோட சொன்ன உடனே மேலே நம்பிக்கை வரலன்னு சொன்ன உடனே அப்போ ராமர் கொடுத்த மோதிரத்தை கொடுத்த உடனே மோதிரத்தை பார்த்தா சாட்சா ராமனே பார்க்குற மாதிரி அந்த விரலை பார்த்தா, கையை பார்த்தா, அப்புறம் ஆச்சாரம் பாகவானாருடைய மார்பை பார்த்தா, ராமருடைய மகாத்மா பார்த்தா, அப்போ ராமருடைய முகமண்டலத்தை பார்த்து அப்படியே கண்களில் கண்டிப்பாக அந்த மோதிரத்தை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிட்டான். ராமருடைய மோதிரம் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்போ சந்தோஷப்படுறா. அப்புறமா 2 பேருக்கும் அந்யோன்யமாக சம்பாஷணை இப்போ நம்பிக்கை ஏற்பட்டது ஆஞ்சநேயர் மேலே. அப்போ கேட்குறார் ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், நீ இவ்வளோ துக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் என் முதுகு மேலே ஏறிக்க நான் ராமர் சன்னிதானத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறேன். பரபுருஷனை நான் தொடமாட்டேன், அது என் பதிவிரதா தர்மத்துக்கு. அப்போ ராவணன் மட்டும் அபகர்ஷன் வந்தானே, அது தொட்டதாகாதான். நான் விருப்பப்பட்டு அவளை தொல்லை, அவன் பலாத்காரம் பண்ணியெல்லாம் அழிச்சுமானான். அதனால் நான் அவனை மனசால் கூட தான் தொட்டது கிடையாது ராவணனை. அப்படி இருக்கும்போது ராவணன் பலாத்காரம் பண்ணியே நான் அழிச்சுமானேன், அதை நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஆனாலும் நான் பரபுருஷன் நான் தொடமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி, ஆனால் அது மட்டும் இல்லைப்பா, தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். நீ என்னை தூக்கின்னு போனால், தோல் மேலே என்னை தூக்கின்னு போனால் ராட்சசர்கள் திடீர்னு முற்றி வளைச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு ராட்சசர்களோடு சண்டை போடுவியா, இல்லை என்னை பாதுகாப்பியா? இல்லை நான் பயத்தில் நடுங்கி நான் சமுத்திரத்தில் விழுந்துட்டேன்னா, சமுத்திரத்தை தாண்டி தானே போகணும், விழுந்துட்டேன்னா அப்படின்னு. அப்போ பல காரியங்களை சொல்கிறா. அம்மா அப்படிலாம் நினைக்காத, எனக்கு இந்த லங்கையில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் வதம் பண்ணக்கூடிய சக்தி எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி தன் விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்டுறார் சீதையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, ஆமாம் உனக்கு பராக்கிரமம் இருக்குது, இருந்தாலும் நான் பரபுருஷனை தொடக்கூடாது, அது அந்த விரதம் நான் மேற்கொண்டிருக்கிறேன், பதிவிரதா தர்மத்தை மேற்கொண்ட நான் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே, அது அம்மா உங்களுக்கே இது தகும், நீங்கள் தான் இப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறார், புகழ்கிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி சீதையை புகழ்ந்து. அதற்கு பிறகு அவள் கொடுத்த சூடாமணியை வாங்கி கொண்டு அசோகவனத்தை அழித்து ராவனுக்கு புத்திமதி சொல்லி லங்கா தகனம் பண்ணி சீதை இடத்துல உத்தரவுப்பட்டு கொண்டு கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு ராமர் இடத்துல போய் சொல்கிறார். இது வரைக்கும் நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டோம், நிறைய கதை இருக்குது. அப்படின்னு நம்ம பாராயணம் பண்ணும்போது நம்ம கதை சொல்ல முடியாது, அதனால தான் நம்ம முழுசாக இப்போ சுருக்கமாக கதையை சொல்லிட்டேன். விஷயம் இதுதான். அதுவும் அங்கே மதுபானத்தை அழிக்கிறது, அந்த மதுபானத்தில் தேனடைகளை சாப்பிட்றது, பழங்களை சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் வானர்கள் ஆஞ்சநேயர் சக்ஸஸாக இந்த செய்தியை பார்த்துட்டு அங்கே போய் கடற்கரை தாண்டியில் போய் அங்கே வானர்லாம் காத்து கொண்டிருக்காங்க, அங்கே போய் பார்த்து அவங்க இடத்துல சொல்கிறார் விஷயத்தை. அவங்களாம் மதுபானத்தெல்லாம் அழித்து அந்த தேனடையெல்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுறாங்க. அது பிறகு ராமர் இடத்துல போய் வெகுமானம் வாங்குறார். கண்டேன் செய்தின்னு ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார். ஆலிங்கன பாக்கியத்தை கொடுக்குறார். தன்னையே சர்வஸ்வம் அப்படின்னா என்னை மொத்தமாக நான் உன்னிடத்தில் ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்னு ராமர்
ஆஞ்சநேயர் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறாரு, அந்த வெகுமானத்தை வழங்குறாரு, தன்னையே கொடுக்குறாரு பகவான். அவர் பண்ண உதவிக்கு என்ன கொடுக்க முடியும்னா பகவான் தன்னையே கொடுத்தால் வழியே வேறு எதுவும் அதுக்கு ஈடு கிடையாது. ஒரு ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவிடத்தில் சேர்த்து வைக்கிற குருநாதருக்கு என்ன செய்ய முடியும்? பதில் பகவான் என்ன பண்ண தன்னையே கொடுத்துறது தவிர. அது மாதிரி ஒரு கஷ்டப்படுகின்ற பதிதர்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மாக்களை ஒருத்தன் கரையேற்றான்னு சொன்னால் அவனை நாம சொல்ல வச்சாலும் சரி, அவர்களுக்கு பாகவதம் புகட்டினாலும் சரி, அவளுக்கு ராமாயணம் சொல்ல வச்சாலும், அவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் யார் அழிச்சுன்னு வராங்களோ அவங்களிடத்துல பகவான் கடன்பட்டவன் ஆயிடுறானோ. ஏன்னா ஒரு ஆத்மா கீழே விழுந்து போகும்பொழுது அவர்கள் சம்சாரத்தில் விழுந்து போகிற அவர்களுக்கு ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுத்து, ஆத்ம விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்து, அவர்கள் ஆன்மீக வழியில் திருப்புறாங்க பற்றியா, அவர்களுக்கு எந்த உபகாரமும் செய்ய முடியாது, பதில் செய்ய முடியாது. அதான் சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட சீதையோடு ராமன் சேர்த்து வச்சாருன்னு சொன்னால் ஒரு ஆத்மாவை பகவான் பக்கம் இல்லை உயிரை விட்டுருப்பார். இதே ஆஞ்சநேய சுவாமி போகாமல் இருந்தாருன்னா அது சிம்ச வருஷத்தை தொங்கிட்டு இருப்பாள். ஆனால் ஆஞ்சநேய சுவாமி அவளை பயப்படாத சொல்லி, ராமன் ஒருத்தர் இருக்கிறார், நீ கவலைப்பட, ராமலக்ஷ்மணன் வந்தாங்கன்னா இந்த ராவணை பூண்டையெல்லாம் அழிச்சிடுவாங்கண்ணா, அதே மாதிரி அழிச்சிடுறாரு அப்படி ஒரு ஆத்மாவை கரையேற்றுறா சொன்னால், அப்படி கரையேற்றினாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு பகவான் வசப்பட்டவன், அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இதான் விஷயம். அதனால தான் அந்த ராமர் அந்த பக்தர்களுக்கு தன்னையே கொடுத்துட்றாரு பகவான். சரி, இப்போ நம்ம பாராயணம் ஆரம்பிப்போம். முதல் சர்க்கம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் அத சுந்தரகாண்ட பிரதம சர்க சாகரலங்கனம். ராம 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 ததோ ராவணநீதாய சீதாய சத்ருகர்ஷண ஈயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதேபதி துஷ்கரம் நிஷ்பதித்வந்தம் விகர்ஷன்னே கர்ம வானரः சமுதக்ர சிரோகுரீவோ தவாம் பதி ரிவாபபோ அதவைதிர்யவர்ணேஷு சாத்வலேஷு மகாபலः தீரசலிலகல்பேஷு விசச்சார யதாசுகம் त्रिजान वित्रासयन धीमान वरसापादवान हरण्य मृगांस्य सुबहुर्निक्नन् प्रवृत्तैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ट भद्रवर्णैः सिदासिदैः स्वभावविहितश्चित्रे दाद्भिः समलङ्कृतं कामरूपिभिर् आविष्टम् अभीक्ष्णं सबरिच्छतिः यक्षकिन्नरगन्धर्वे देवकल्पश्च पन्नगैः स तस्य गिरिवर्यस्य तले नाग वरायुधे दृष्टन् कविवरस्तत्र हृदे नाग इवाबभौ. இந்த அடியன் படிக்கிறது இந்த புஸ்தகம் தான். இது வெங்கடேஸ்வர ட்ரஸ்ட்டுன்னு போட்ட புஸ்தகம் தான். எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சில பேர் கீதா ப்ளஸ் எடிஷன் வாங்கி படிப்பாங்க, மூலபாராயணம். இப்போ அடியன் இது வச்சுருக்கேன். யாருன்னா அதாவது தமிழ்நாட்டில் பிரபல்யமாக இருக்கக்கூடிய சுந்தரகாண்டத்தை வாங்கி பாராயணம் பண்ணலாம். இது கீதா ப்ளஸ்லேயே போட்டிருக்காங்க, தமிழில் போட்டிருக்காங்க. சுந்தரகாண்டம் புஸ்தகம் மட்டும் தனியாக போட்டிருக்காங்க, மூலபாராயணம். அதை கூட வாங்கிக்கலாம். வாங்கிட்டால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஈஸியாக. இப்போ அடியன் படிக்கிறது இந்த புஸ்தகம் தான். இதை பார்த்துக்கிட்டிங்களா? இதுதான் இது சம்ஸ்கிருதம். இது தமிழில் சம்ஸ்கிருதம் போட்டது இருக்குது, கீதா ப்ளஸில் போட்டிருக்காங்க. அது இன்னும் 30 ரூபா 40 ரூபா தான் இருக்கும், அதிகமாக இருக்காது. அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டலாம். வீட்டில் சுந்தரகாண்டம் நித்தியம் பாராயணம் பண்ணால் அது பிறகு நீங்களே பார்ப்பீங்க பாருங்களேன், அவ்வளோ அதிசயங்கள், அவ்வளோ பலன்கள், பெரிய பெரிய பலன்களை கொடுக்கக்கூடியது, சிறந்த ஞானம், மோட்சத்தையே கொடுக்கக்கூடியது சுந்தரகாண்டம். அவ்வளோ விசேஷம். கண்டிப்பாக எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணணும். அதனால் கண்டிப்பாக பார்க்குங்க. இல்லை உங்களுக்கு எந்த வசதியாக இருக்கும், எப்படி எந்த புஸ்தகம் வச்சுருக்கீங்களோ அதை அப்படியே வச்சு ஃபாலோ பண்ணலாம். ஏன்னா சில வார்த்தைகள்லாம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும், பரவாயில்ல, அதெல்லாம் பெரிய தப்பு கிடையாது. தாராளமாக வார்த்தைகள் தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல. ஒன்று தான் எங்கேயோ மிஸ்டேக் இல்லை, வார்த்தை மாறி இருக்கும், அவ்வளோதானே தவிர தாராளமாக எந்த சுந்தரகாண்ட புஸ்தகம் வேணால் ஃபாலோ பண்ணலாம். மொத்தம் சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பண்ணுறதே பாக்கியம். அதனால் எவ்வளோ சுந்தரகாண்டம் மட்டும் நித்தியமாக பாராயணம் பண்ணுறவங்களாம் உண்டு. எவ்வளோ பிராமணர்கள் அதை பாராயணம் பண்ணுறதுனால அவ்வளோ க்ஷேமங்கள் உண்டாகும், மனசில் உற்சாகம் உண்டாகும், சந்தோஷம், ஆஞ்சநேயருடைய பூர்ண அனுகிரகம் உண்டாகும். முன்னை இட்டத்தை முப்புறத்திலே பின்னை இட்டத்தை தென்னிலங்கையில் மாதிரி முன்னாடி இந்த நெற்றி கண்ணால் எரிச்ச சிவபெருமானே தான் ஆஞ்சநேய சுவாமியாக லங்கையில் வாலில் நெருப்பு வைக்கிறார், வேறு யாரும் இல்லை, அவரே தான். அப்போ மங்களம் உண்டாகும். சுந்தரம்னாவே மங்களம் தான். அதான் சுந்தரகாண்டம். சுந்தரர் யார்? சிவபெருமான். சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் சொல்கிற இல்லையா, அவர் தான் சுந்தரம் தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அவர் தான் சுந்தரேஸ்வரர் தான் வராருங்க. அதனால் சுந்தரகாண்டம்னே பேர் இதுக்கு. அதனால் இது மங்களத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. அதனால் கண்டிப்பாக சுந்தரகாண்டம் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய புஸ்தகம் சுந்தரகாண்டம். எல்லோரும் நித்தியமாக பாராயணம் பண்ணணும். இல்லை பாராயணம் முடியலன்னா பாராயணம் பண்ணுறதுலையாவது நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணால் போதும். ரொம்ப விஷயம். பாராயணம் ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா தமிழில் இருக்கும், சுந்தரகாண்டத்தில் தமிழ்லேயே ஸ்லோகம் இருக்கும், அதே படிக்கலாம். அப்படியே
ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் அது சுந்தரகாண்டः முதலிருந்தே படிச்சிடலாம். அது சுந்தரகாண்டः பிரதம சர்க்கः சாகரலங்கனம் तदो रावणनीतायः सीतायः शत्रुघर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरितेपदी दुष्करं निष्पदित्वं विकर्षन् कर्मवाणरः समुदक्रशिरौक्रीवो गवांपदि रिवाबुभो पदवैद्युर्यवर्णेषु सात्वलेषु महाबलः धीरसरलकल्पेषु विचचार यदा सुखं तुजान् वित्रासयन् देवान् वरसा पादवान् हरन् मृगंश्च सुबहुन् निक्नन् प्रवृत्तैव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्टभक्तवर्णैः सिदासितैः स्वभावविहितश्चित्रे तादृभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सबरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वे देवकल्पश्च पन्नगैः सदस्य गिरिवर्यस्य तलेनाह वरायुधे दृष्टन् कविवरस्तत्र हृदयनाह इवाबुभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय आत्मयोनिये भूदेभ्यश्च अञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मदिम् अञ्जलिं प्रामुखः कुर्वन् भवनाय आत्मयोनिये तदो हि ववृते गन्तं दक्षिणां दिशं प्लवङ्गप्रवरे दृष्टः प्लवने कृतश्च यः ववृते रामवृत्त्यर्थं समुद्रैव पर्वसु निष्प्रबाणशरीरः सरलं संलिलङ्कयिषुरार्तवं बाहुप्यं पेडयामास चरणाप्यं च पर्वतं स चचाल अचलश्चापि मुहूर्तं कविपीडितः तरुणं पुष्पिताक्राणं सर्वं पुष्पम् असादयत् देन पादवो मुक्तेन पुष्पकेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतशैलो भवो पुष्पमयो यदा देन चोत्तमवेद्येन विद्यमानस्य सर्वतः स पर्वतः सरलम सम्प्रसुस्राव मदं मत्त इवत्पिपः वेद्यमानस्तु परिणः महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्चनराजधीः मुमोच च शिलाशैलो विशालसुमनशिलाः मध्यमेन अर्चिषा जुष्टो धूमराजिरिवाणलः गिरिणा वीत्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि बोधानि विनेदुर्विकृतैः स्परैः स महासत्त्वसन्नाथः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिवी सर्वः व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः पवन्तबाहोङ्गोरं तदंशुर्दर्शनैः शिलाः तास्तदा सविषे दष्टाः कुपितस्थैर्महाशिलाः जज्बलहो पापो तिक्ता विभूतिश्च सहस्रदा यानि च औषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषक्नान्यवि नाकाणमन्नशे गुः समिदं विषं विद्यते अयम गिरिभूतरिति मत्वा तपस्विनः तस्तः विद्याधरस्तस्मात् उत्पेदुः स्त्रीगणैः सह वानभूमिगतं हित्वा हैममासव भाजनं पात्राणि च महर्काणि कर्कां च हिरण्मयान् लेह्यान् उच्चावचानं भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आश्रवाणि च चर्माणि गत्कां च कनगत्सरोन् कृतकण्ठं गुणाः शिवा रक्तमाल्याणि लेपनः रक्तक्षपुष्कराक्षाश्च गहनं प्रतिवेदिरे हारणोपरि केयूरा पारिहार्यधरा स्त्रियः स्फितः सस्मितः सस्तुराकाशे रमणे सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सप्रियास्तस्तुराकाशे वीक्षां चक्षुश्च पर्वतं शुश्रुवश्च तदा शब्दं ऋषीणां भाविदात्मनां चारणानां च सित्तानां स्थितानां विमले अम्बरे येष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारदात्मजः तितिर्षदि महावेगः सागरं महरालयं रामार्थमानदात्तं च शिखिषन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं भारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति यदि विद्याधरः श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ततृषुः पर्वते वानरर्षभं तुदवेच्च स रोमाणि चकम्बे चाशुलोपमः ननादसु महानादं स महानिव दोयतः आणुपूर्व्येण वृत्तं च लाङ्गुलं रोमभिश्चिदम् उत्पदिश्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गुलम् आवित्तम् आत्वेकस्य पृष्ठतः ततृषे गरुडेनेव ह्रियमाणं महोरगः बाहु संस्तम्भयामास महापरिगसन्निभौ ससादच्च कविः कट्यां चरणचञ्चुकोच च संहृत्य च भुजस्त्रीमस्तदैव च शिरोधरां देजसत्त्वं तदा वीर्यम् आविवेशत्स वेद्यवान् मार्गम् आलोक्येन दूरात्मत्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशम् अवलोकयन् पद्यं दृढमवस्थानं कृत्वा स कविकुञ्चरः निकुञ्चकर्णम् हनुमान् उत्पदिश्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यदा राघवनिर्मुक्तः शरः स्पशनविक्रमः अच्छे तत्त्वत् गमिष्यामि लङ्कां रावणबालितां न हि द्रक्ष्यामि यदिदां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि प्रदर्शमः बद्ध्वा राक्षसराजानाम् आनयिष्यामि रावणं सर्वदा कृतकार्यो अहं येष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपादादवेगेन वेगवान् अविचारयन् सुवर्णमिव चात्मानमेन स कविकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्य नगरो यतः संहृत्य विडवान् सर्वान् समुत्पेदुः समन्ततः स मत्तगोयष्टिभहान् पादवान् पुष्पशालिनः उत्पहन् ऊरुवेगेन जहाम विमले अम्बरे
ओरिवेगोत्तदा वृक्षः मुहूर्तं कविमन्वयुः प्रस्थितं तीर्कमत्पाणं स्वपन्तुमिव बान्धवाः तत्वोरिवेगोन्मदितः सालाश्चान्ये नहोत्तमः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्य इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादभिरन्वितकविः हनुमान् पर्वताकारो बभुव अद्भुतदर्शनः सारवन्तदये वृक्षः न्यमज्लवणाम्बसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वता वर्णालये स नानाकुसुमैः कीर्ण कविः साङ्गुरगोरगैः स्वशभिः मेघसङ्कषः गत्वदिव पर्वतः विमुक्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते त्रमः अवसिद्यन्त सरले निवृत्ता सुहृदो यदा लघुत्वेन उपपन्नं तद्विचित्रं सागरे अवदत्ते त्रमाणं विविधं पुष्पं कविवायु समीरितं पुष्पकेन अणुवित्तेन नानावर्णेन बाणरः अवो मेघ युवत्यन्वैः विद्युद्गण विभूषितः लास्यवेग समादूतैः पुष्पस्तोयम् अदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिरिवाम्बरं तस्यांबरखदो बाहु तत्रुषादि प्रसारितौ पर्वताक्रात् विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्त्यव पन्नगौ इवन्निव पपो श्रीमाणौ स्वर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिपच्चाकाशं तत्रुषेत्स महाकविः तस्य विद्युत् प्रभागारिः वायुमार्गानुसारिणः नयने सम्प्रकाशेते पर्वतास्तौ विमानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य प्रहृति परिमण्डले चक्षुषे सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्ये विबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावपौ सञ्जया समुत्पृष्टं यदा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गुलं च समावित्तं प्लवमाणस्य स्वपदे अम्बरे वायुपुत्रस्य सक्कर्त्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गुलचक्रेण महान् शुक्लदंश अनिरात्मजः विरोचत महाप्राज्ञः परिवेशिव भास्करः स्पिक्तेशेन आदिताम्रेण राजस महाकविः महदादारदेनेव गिरिगैरिगदादुना दस्यमाणसिंहस्य प्लवमाणस्य सागरं कक्षान्तरगदो वायुर्जीमूद इव गर्जति गे यदा निवदन्त्युल्का चुत्तरान्तात् विनिश्रुता तस्यते साणुपन्ता च तदा स कविकुञ्चरः पदत्पदङ्कसङ्काशो व्यायधः शुशुभे कविः प्रवृत्त इव मादङ्गः कक्षया वत्यमाणया उपरिष्टशरीरेण छायाया चापकाडया सागरे मारुदाविष्टा नौरिवासित् तदा कविः नौरिवासित् तदा कविः यं यं देशं समुद्रस्य जगामस महाकविः सस तस्योर्वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिमालानं वरसा शैलभस्मणाम् अविक्तंस्तमहावेगः पप्लवेत् स महाकविः कविवादस्य बलवान् मेघपादस्य निःश्रुतः सागरं वेम निर्घोषं कम्पयामास दुर्पुरुषम् विकसन् ऊर्मिजालानि बृहन्ति रमणाम्बसः पुप्लवे कविसादोलो विहिरिन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्गासान् उद्गतान् समहार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् कणयन्निव तस्य वेगसमुत्वदं जलं सजडतं तदा अम्बरस्तम विपप्राज शारदाप्रं विवादतं तिमिरक्रजशाकूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापघर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्यात् भुजङ्गः सागरालयः व्योम्नितं कविसादोलं सुवर्ण इरिमे निरे तस्योजन विस्तीर्णं 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले वा चारुतराभवत् श्वेतप्रगणराजीवः वायुपुत्राणुकामिनी तस्किसा शुशुभे छाया विहृता लवणाम्बसि शुशुभेत् स महातेज महाकाय महाकविः वायुमार्गनिरालम्बे पक्षवाणिपर्वतः येनासो यादिर्बलवान् वेगेन कविकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृते वार्णवः आबाधे पक्षिसङ्गानं पक्षिराजै बाबुभौ हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यदा प्रविशन् अप्रजालानि निष्पदं च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जष्टकानि च कविना कृष्यमाणानि महाप्राणि चकाशिरे प्लवमानं तुदं दृष्ट्वा प्लवगमत्वरिदं तदा बभृशु पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः तदा नहितमुत्सोज्यः प्लवन्तमाणरेश्वरं शिशिवे च तदा वायु रामखाद्यात्तसिद्धये ऋषयस्तुष्टवश्चैनम प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वः प्रशंसन्तो महोजसं नाकश्च दुष्टुर्यक्षः रक्षांसि विबुधा खगाः प्रेक्ष्याकाशे कविवरम सकसा विगतक्लवं तस्मिन् प्लवकसार्दूले प्लवमाणे हनुमदि यक्ष्वाकुलमाणार्ति चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदिनाहं हनुमतः हरिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनादेन सकरेण विवर्तितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तदा मया विदातव्यं निश्रमेद यदा कविः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेन अधिपदिष्यति इति कृत्वा मदिं सात्विं समुद्रशन्नमम्बसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्गानां
मादलतलवासिनां देवरत्नागिरिश्रेष्ठः परिकः सन्निवेशितः त्वमेषं जातवीर्याणां पुनरेवोत्पदिष्यतां पादलस्य अप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि दिर्योगोत्वम् अधश्चैव शक्तिस्ते शैले शैलवर्तितम तस्मात् संशोधयामि त्वाम् उत्तिष्ठ नगसत्तम स एष कविसादुलस्त्वाम् उपैष्यति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं वेमकर्म खमप्लुदः अस्य साह्य मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्य परम पूज्यतमास्तव गुरुसाचिव्यम् अस्माकं ननः कार्यम् अधिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सदा मञ्जुमुदीरयेत् शरणात्मोत्तमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कविस्त्वयि अस्माकम् अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः सामीकर महानाभ देवगन्धर्वसेवित हनुमान् स्वयि विश्रान्तस्तदक्षेषं गमिष्यति काकुस्तस्य आन्ध्रसंशयं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवकेन्द्रस्य समीक्षोत्तादमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाभो निशम्य लवणाम्बसः उत्पपाद जलात्वर्णं महात्रिमलदायुधः ससागरजलं विद्वा पप्वाप्युत्थितस्ततः यदा जलधरं विद्वः दीप्तरश्मिरिव दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलाव्रतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः साधुकुम्भमैः शृङ्गैः सकिन्नर महोरगैः आदित्योदयसङ्घर्षैः आलिगत्पिरिवाम्बरं तप्तजाम्बरदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं सत्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमैः शृङ्गैर्विराजमाणैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः स्व अभवत् गिरिसत्तमः तमुत्थितम् असङ्ख्येन हनुमान् अक्रतस्थितं मध्यः लवणतोयस्य विघ्नो अयमिति निश्चितः सदम उच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकविः वर्षापादयामास जीमुदमिव मारुतः स तदा पादितस्तेन कविना पर्वतोत्तमः भूत्वा तस्य कवेर्वेगं जहर्ष ननाद च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमणः वाक्यमप्रवित्त पर्वतकविं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्मः त्वमिदं वानरोत्तम निपत्यमो शृङ्गेषु विश्रमस्व यथासुखं राघवस्य कुले जातिरुदितिः परिवर्तितः सत्त्वं रामहिरेयुक्तं प्रत्यर्च्य यदि सागरः कृतेच्च प्रतिकर्तव्यं येष धर्मसनातनः स्वयं तत्प्रतिकारार्थिः त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानं सदं चापि कविरेश कमप्लुतः तपसानुषविश्रान्तः शेषं प्रकृतमदामिति तिष्ठत्वं हर्षादोलमयविश्रम्य गम्यतं तदिदं कन्दवत्तस्वादु कन्दमूलफलं बहु तथा स्वात्यः हरिश्रेष्ठ विश्रम्य स्वकमिष्यसि अस्माकमपि सम्पत्तः कविमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु बहु महागुणपरिग्रहः वेगवन्त प्लवन्तो यः प्लवक मारुतात्मजः देशं मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कविकुञ्जर अतिथिः किल भूचार्ह प्राकृत अपि विचारता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्ज्ञातृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृश कविकुञ्जर भोजित त्वयि धर्मज्ञ भोजं प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं भोजनीयो मे शृणुश्चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे ताद पर्वतः पक्षिणा भवन् दे अभिजक्पो दिश सर्वः गरुडानिलवेगिनः अधस्तेषु प्रयादेषु देवसङ्गसहर्षिभिः भूतानिच वयं जक्पुस्तेषां वदनसङ्गया अधकृतः सहस्राक्षः पर्वतानं सदक्रतुः पक्षां चिच्चेद वज्रेण तत्र सकर्षसः समाम् उपगतः कृत्वा वज्रमुत्यम्य देवराट् अदोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतोये च पक्षित्ते लौगोत्तमे गुप्तपक्षसमक्रश्च दव पित्राभिरक्षितः ततो अहं मानयामि त्वां माञ्जो हि मम मारुतः मया मे शेष सम्बन्धः कविमुख्य महागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्यः सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाकर्तम त्वमर्हसि महाकवे श्रमं मोक्षय भोजं च गृहाण कविसत्तम प्रीतिं च बहु मञ्जस्व प्रीतास्मि तव दर्शनात् ये मुक्तकविश्रेष्ठस्तं नहोत्तमम् अब्रवीत् प्रीतास्मै कृतमादित्यं मञ्जुरेश अवनीयतां त्वरते कविहाद्यकालो मे ह्यहश्च व्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्तः न स्थातव्यं विहान्तरा ये त्यक्त्वा पाणिनः शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः दहमाकाशमावेश्य विद्यमान् प्रकसन्निभः स पर्वतसमुत्राप्त्यं बहुमानात् अपेक्षितः भोजस्तोपन्नाभिर् आशिभिरनिरात्मजः अदत्वं दूरमुत्पत्त्यः हित्वः शैलमहार्णवं विदुः पन्ताणमास्ताय जगामः विमले अम्बरे ततश्च ऊर्ध्वगतिं प्राप्त्यः गिरिं तम् अवलोकयन् वायुसुनिररालभ्य जगाम विमले अम्बरे तत्विदीयं हनुमदो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुः सुरा सर्पैः सिक्ताश्च परमर्षयः देवाश्च अभवन् हृष्टस्तस्य कर्मणा
हृष्टस्तत्रस्तास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनापस्य सहस्राक्षस्य वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परिदोषात् स गद्गदं सुनापं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः किरण्यनाभशैलन्त्रं परिदुष्टास्पिते पुरुषम् आभयन्ते प्रयच्छामि दिष्टसंज्ञ यदा सुखम साह्यम गदं त्वया संज्ञः विक्रान्तस्य हनुमदः क्रमतो योजनशतम निर्भयस्य भये सतिः रामस्यैष हिदायैव यादिदाशरथैर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्यः दोषिता अस्मि कृशम त्वयः ततः प्रकष्टमहमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवदानं पदिं दृष्ट्वा परिदुष्टं सदकृतं सभैः तत्तपर शैलः बभुव अवस्थितस्तदा हनुमंश्च मुहूर्तेन व्यधिचक्राम सागरं ततो देवः स गन्धर्वः सित्ताश्च परमर्षयः अप्रपन्न सूर्यसङ्कासं सरसं नागमादरम् अयं वादात्मजः श्रीमन् प्रपदे साहुरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचरः राक्षसं रूपमास्ताय सुघोरं पर्वतोपमं दंशाकरालं पिङ्गक्षमक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयाश्चास्य पराक्रमं त्वां विजयिष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्त्वा तु सा देवी दैवते अभिसत्कृता समुद्रमध्ये सरसा विप्रति राक्षसं बभुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमाणं हनुमन्तम् आवृत्येदम् उवाचः मम पक्षः प्रविष्टस्त्वम् ईश्वरैर्बाणऋषभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदम् अमाननम् एवमुक्तः सरसया प्राञ्जलिर्बाणऋषभः प्रविष्टवदनः श्रीमान् सरसां वाक्यमब्रवीत् रामदासरथिः श्रीमान् प्रविष्टः दण्डकावनं लक्ष्मणेन सकप्रात्रा वैदेह्या चाभिबाध्यया अन्यकार्ये विषक्तस्य भक्तवेदस्य राक्षसिः तस्य सीता हृदा बाध्यः रावणेन यशस्विनी तस्याः सङ्घासं तूदाहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हस्य रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्तः हनुमता सरसा कामरूपिणी अप्रवीणाधिपत्यन्मां कश्चिदेश वरो मम तं प्रयान्तं समुत्प्रेक्ष्य सरसा वाक्यमब्रवीत् वरं जिज्ञासमाणा वै नागमादा हनुमतः प्रविश्य वदनं मे अद्य गन्तव्यं वानरोत्तम पर एष पुरातत्त्वममतात्र यदि सत्परा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुते पुरः एवमुक्तः सरसया कृत्वा वानरपुङ्गवः अब्रवीत् गुरुवै वक्त्रं येन मां विषयिष्यसे इत्युक्त्वा सरसां कृत्वा दशयोजनविस्तारो तपो बभूव हनुमंस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्कासं दशयोजनमायदं चकार सरसाप्यास्यं विंशत्योजनमायदं तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं वायुपुत्र सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सरसया सुघोरं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कार्यं जीमुदैव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूव अङ्गुष्ठमात्रकः स अभिपत्यासु तद्वक्त्रं निष्पत्य महाजपः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् प्रविष्ट अस्मि हृदे वक्त्रम दाक्षायिनी नमोस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीत् परस्तव तां दृष्ट्वा वदनोन्मुक्तं सन्तं राहुमुखादिव अब्रवीत् सरसा देवी स्वेनरूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्य हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्ये यदा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्तृतीयं हनुमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम साधु सत्विधिबोधानि प्रशंसस्तदा हरिं जहामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविदे वारिदाराभिः पदकैश्च निषेविदे चरिते कैशिकाचार्य ऐरावत निषेविदे सिंहकुञ्जर साधूल पदकोरुगवाहनैः विमानैः सम्पदद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासने समाघातैः भावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वगर्जिद्भिरलङ्कृते महदा हव्यमत्यत्वं सेविते चत्रवारणा ग्रहनक्षत्र चन्द्रार्क धाराघन विभूषिते महर्षि कनकंदर्भ नागयक्ष समाकुले प्रविक्त विमलं विश्वावसु निषेविदे देवराज गजाक्रांते चन्द्रसूर्यपदे स्ते शिवे विधान जीवलोकस्य विदते ब्रह्मनिर्मिते बहुशे सेविते वीरे विद्याधरगणैर्वरैः जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यदा कालाघुरु सवर्णानि रक्तपीतसिदानि च कविना कृष्यमानानि महाप्राणिशिखा चकाशिरे प्रविशन् अप्रजालानि निष्पदंश्च पुनः पुनः प्रविशन्तुरिव वादि निष्पदन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमान सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः मेजे अम्बरम निरालम्बं लप्तपक्ष इवात्रिराट् प्लवमानं तदं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृत्ता कामरूपिणी अत्यधिकस्य कालस्य भविष्यम् अहमाश्रिता इदं हि मे महत् सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तस्मिन् सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः
प्रतिलोमेन वादेनः महानौरिव वानसागरे दिव्यकुत्तुमदश्चैव वीक्षमाणस्ततः कविः तदर्थस्य महत् सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्बसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुते विकृताननम् अभिराजेन कथितं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनं छायाग्राह्य महाविद्यं तदितं नात्र संशयः सदम बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिका मदिमान् कविः यवत्तदमहाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुत्प्रेक्ष्य वर्तमानमहाकविः वक्त्रं प्रसारयामास पादालान्तरसन्निभं गणराजेव गर्जन्ते वानरसमभित्रवत् स तदर्श ततस्तस्यः दुर्वृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी पद्माणि च महाकविः स तस्य निवृत्तेः वक्त्रे वज्रसंहरणकविः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपाद महाबलः आस्य तस्यः निमज्जन्तं ततृष सिद्धचारणाः रस्यमाणं यदा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुना ततस्तस्य नखैस्तीक्ष्णैर्वर्मन् उत्कृत्य वानरः उत्पपादाद वेगेन मनसंवादविक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कविप्रवरवेगात् बभृते पुनरात्मवान् हृदहृत् सा सानुमदा पपाद विदुराम्बसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्य विनाशने तां हतमानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां बोधन् आकाशचारिणी तमूचुः प्लवकोत्तमम् एवं मत्य कृतं कर्म महत् सत्त्वं तया हदं साधयात्तम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवताम्बर यस्य वेदानि चत्वारि वाणरेन्द्र यदा दव स्मृतिर्मदिताक्षेमं कर्मसु न सीदति सदिः संभावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नकासनवत् कविः प्रावृत्तभूयिष्ठवारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां सदस्यांते वानराज्यं तदर्शसः ततश्च पदन्नेव विविक्तत्रमभूषितं तीवं साह मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान् प्रमाण सागरस्य च पत्नी नम मुखाञ्जभिर्विलोकयन् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्य आत्मनम् आत्मवान् निरन्तमिवाकाशं सकारम् अधिमान् मदिमं कायवृत्तिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्यति मेने महाकविः तद शरीरं संक्षिप्य तन्महीतरसन्निभं पुनः प्रकृतिमावेदे वेदमोह इवात्मवान् तत्रूपम् अधि संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रिणक्रमानिव विक्षम्य बलिवेद्य हरो हरिः स चारुनानावितरूपधारी परं समासात्य समुद्रतीरं परिरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितात्तः तदत्सलम्बस्य शिरे समृत्ते विचित्रगोडे निपपादगोडे सगेदगोत्तालकनारिकेलहे महात्रिगूढ प्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिकाराजमूर्ध्नि कविस्तु तस्मिन् निपपादपर्वते विविधूय रूपं यदयन् मृगध्वजान् ससागरं दानवपन्नकायुधं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधे ससागरं दानवपन्नकायुधं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महो तदेस्तदा ततत्सलङ्काम् अमरावतीं जिव इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः शरणमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। आंजनेय स्वामी की जय। இப்போ ரெண்டாவது சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணலாம். அதாவது துதிய சர்க்கः निशागम प्रतीक्षा ससागरान् अनातृष्यम् अधिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितमस्तु तदर्शः तदा पादमुक्तेन पुष्पवर्षेण विद्यमान् अभिविष्टः स्थितस्तत्रः पवो पुष्पमयो यदा योजनानां सदं श्रीमस्य तीर्थम् अप्युत्तमविक्रमः अणिससन् कविस्तत्र नक्लानि अधिगच्छति सदां जहं योजनानां क्रमेयं सुबहुन्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं सदयोजनं सद् स्वीर्यपदां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जहामः वेगवान् लङ्घयित्वा महोदधिं सात्फलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गन्धवन्ति च मध्येन जगाम नगवन्ति च शैलां च तरुभिश्चन्नान् वनराजश्च पुष्पितः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवकर्षभः स तस्मिन् अचले दिष्टन् वनानि उपवनानि च स नखगृहे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् खर्दिकारांश्च खर्जुरांश्च सुपुष्पितान् प्रियाणान् मुचिलिन्दांश्च गुडजान् केदकानपि प्रियङ्गुन् कन्दपूर्णाश्च नीवान्
शब्दशतंस्तदा आसनान् कोपितांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पवारनिबद्धांश्च ततः मुकुलितानपि पादवान् विहगागीर्णान् पवनातोदमस्तकान् हंसकारण्डवागीर्णः वाभिः पद्मबलायुधः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधवृक्षैः सर्वत्र फलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि तदर्श कविकुञ्जरः समासात्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणबालितां परिगाभिः सवत्माभिः स उद्बलाभिरलङ्कृतां सीता अपहरणात्तेन रावणेन सुरक्षितां समन्तात् विचलद्भिश्च राक्षसी कामरूपिभिः काञ्चनेन आवृतां रम्यं प्राहारेण महापरिमगृहश्च गृहसङ्गासैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिः प्रदोलिभिः उच्चाभिरभिसम्प्रदाम् अट्टालक सदागीर्णां पदाकात्वच मालिनीं तोरणैः काञ्चने दीप्तां लता पङ्क्तिविचित्रितैः तदर्श हनुमां लङ्गां दिभिः देवपुरीं इव गिरिमुत्तैः स्थितां लङ्गां पाण्डरे भवनैः शुभैः स तदर्श कविः श्रीमान् पुरमाकाशकं यदा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणः प्लवमानम् इवाकाशे तदर्श हनुमान् पुरीम् अप्रप्रहारजघनां विपुलाम्बुवनाम्बरां सदग्निशूलकेशान्तम् अट्टालक पदंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणः द्वारम् उत्तरमासात्यः चिन्तयामास वानरः कैलासनर्य प्रख्यमालिगन्तम् इवाम्बरं दीयमानम् इवाकाशम् उत्सितं भवनोत्तमैः सम्पूर्णम राक्षसिर्घोरे नागिर्भोगवतीम् इव अचिन्त्यां सकृतां स्पष्टां कुबेरात्युषितां पुरा तंशिभिर्बहुभिः सुरैः शूलपट्टित पाणिभिः रक्षितं राक्षसिर्घोरे गुहामाशि विषेदिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च समीक्ष्य सः रावणं च रिवं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्याभिः हरयोः भविष्यन्ति निरर्थकः स न हि युक्तेन वै लङ्का शक्यः जेतुं सुरैरपि इमां च विषमां दुर्गां लङ्कां रावणबालितां प्राप्त्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाश स सान्त्वास्य राक्षसेषु अभिगम्यते अवकाशेन सान्त्वस्य राक्षसेषु अभिगम्यते न दानस्य न वेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णां ये हि गतिर्वानराणां महात्मनां बालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेह्यं यदि चेवति वानव तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कविकुञ्जरः गिरिशृङ्गेः स्थितस्तस्मिन् रामस्याप्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्यः राक्षसमपुरी प्रवेष्टं राक्षसैर्गुप्तः क्रूरैर्बलसमन्वितैः उक्रोजसौ महावीर्यबलवन्तश्च राक्षसः वञ्चनिका मया सर्वैः जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येन रूपेण रात्रौ रङ्गापुरी मया प्रवेष्टं प्राप्तकालो मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुरादर्शां सुरासुरैः हनुमश्चिन्तयामास विनिस्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् आतुष्टः राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकमेकस्य पश्येयं रहिते जनकात्मजां बुधश्चात्तः विपत्यन्ति देशकालविरोधितः विक्लपं दोदमासात्यतम सूर्योदये यदा अर्थानत्तान्तरे वृत्तिर्निश्चितापि न शोभते वादयन्ति हि कार्याणि तोदः पण्डितमाननः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं न भवेत् वृथा मयि दृष्टेत्तु राक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेत् व्यर्थमिदं कार्यं रावणार्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अभिराक्षसरूपेण किमुदान्येन केनचित् वायुरप्यत्र ज्ञाप्तश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्यत्यभिदितं किञ्चित् राक्षसाणां बलीयसाम् इहां यदि दृष्टामि स्वेनरूपेण सम्प्रतः विनाशम् उपयास्यामि भर्तृरथश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यं ह्रस्पदं गतः लङ्काम् अभिगमिष्यामि राघवस्य अर्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रवेश्य सुदुरासतां विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजां इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कविः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्य दर्शनोत्सुकः सूर्यचास्तम गदे रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः पृषदंशकमात्र सन् बभूवात्पुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमांश्च दूर्णमुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यं सुविभक्तं महापदां प्रासादमाला विदतां स्तम्भैः
काञ्चनराजदेः साधुकुम्भमयज्जालिः गन्धर्व नगरोपमां सप्तभौम अष्टभौमैश्च स ददर्श महापरिमदलैः स्फाटिक सङ्कीर्णैः कान्तस्फरविभूषितैः वैदुर्यमणिविच्चित्रैश्च मुक्ताचारविराजितैः तलैः सुशुभिरैः दानि भवनानि यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्गाम् उद्योतयामासुः सर्वतः समणं कृताम् अचिन्त्यम् अद्भुताकारं दृष्ट्वा लङ्गा महाकविः आसीत् विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्य दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोत् वित्त विमानमालिनीं महारजाम्बूणतजालतोरणं यशस्विनं रावणबाहुपालितं शवाचरैर्भीमबलैः समावृतं चन्द्राभिः साचित्यमयो इवास्क्य पूर्वंशधारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नाविधानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः संगप्रभं श्रीमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं तदर्श चन्द्रं स कविप्रभिर्ह प्रोप्लूयमानं सरसीव हंसम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीं संहितायां सुन्दरकाण्डे यशाकमप्रदीक्षा नाम द्वितीयः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद। आंजनेय स्वामी की जय। अद तृतीय सर्गः मून्रावद् सर्गं लङ्कादिदेवता विजयः। लङ्किनी जयिक्கிறார் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த சர்க்கத்தில் பார்க்கலாம்। स लम्बशिखरे रम्बे लम्बदोयत सन्निभे सत्त्वमास्ताय मेधावी हनुमान् मार्दात्मजः ऋषिलङ्का महासत्त्वविवेशक विकुञ्जरः रम्यकानन दोयाट्यां पुरीं रावणबालितां शारदाम्बुधरप्रख्ये भवनैरुपशोभितां स्वाहुरूपं निर्घोषं सागरानिल सेवितां सुपुष्टबलसंयुक्तां यदैवः विडवावधिं चारदोरण निर्व्यूहां पाण्डरात्वारदोरणां वचकाचरितां गुप्तां शुभां भगवतीं जिवहतां विद्युत् कणाकीर्णां ज्योतिर्गण निषेविदां मन्दमारुतसञ्चारां यदा सप्त्यामरावधिं साधुकुम्भेन महता प्राकारेण अभिसम्प्रदां किङ्किणिजालघोषाभिः पदाकाभिरलङ्कृतम् असत्य सहसा हृष्टः प्राकारम् अभिवेदिवान् स्पयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदं मयैर्द्वारे वैदुर्यकृतवैदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाडग निर्व्यूहे राजदामलपाण्डरैः वैदुर्यतलसोपाणैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेदैः कमिवोत्पतितैः सुपैः क्रौञ्च बर्हिणसङ्गुष्टैः राजहंसनिषेवितैः दुर्जापननिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिदां पस्वकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः कमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कविः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभम् अनुत्तमं वृत्तिमतीं चिन्तयामास विद्यमान् न्यायम् अन्येन नगरे शक्यः दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधधारभिः कुमुदाङ्गदयोर्वाभिः सुषेणस्य महाकविः प्रसिद्धेयं मवेत् भूमिर् मैन्दत्विविधयोरपि विवस्पतस्य तनूजस्य हरेश्च कुशपर्पणः वृक्षस्य केतुमानस्य मम चैवः गतिर्भवेत् समीक्ष्य महाबाहुराघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कविः तां रत्नवसनोपेदं वेदां कोष्ठागार वदंसकां यन्त्रागरस्तनीमृत्तां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरं देवीर्भास्परश्च महागृहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य तदर्थस्य महाकविः अदस हर्षादूलं प्रविशन्त महाबलं नगरीं स्पेन रूपेण तदर्श भवनात्मजं सादं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्कां रावणबालितः स्वयमेवोत्थितः तत्र विकृतारणदर्शन पुरस्तात् कविवर्यस्य वायुसूनुरर्हते अधिष्ठित मुञ्चमणः महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केनच कार्येण ह्यः प्राप्तः वणालयः कथयस्म्यः यत्त्वं यावत् प्राणतरन्ति ते न शक्य कल्पीयं लङ्का प्रवेष्टं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैर् अभिगुप्ता समन्ततः अदतम् अप्रवृत्तिवीरः हनुमान् अक्रतः स्थितां कथयिष्यामि देख तत्त्वं जन्मं त्वं भरिपृच्छसि का त्वं विरूपणयनः परद्वारे अवतिष्ठसे किमत्तं चापि मां वृत्वा निर्भत्सयसि दारुणा हनुमत्वचनं श्रुत्वा लङ्का स कामरूपिणी उवाच वचनं कृत्वा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्दर्शः रक्षाभि
रक्षामि नगरीमिमां मे न शक्य माम् अवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरी त्वया अद्य प्राणि परित्यक्त स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्कमा सर्वतः परिरक्षामि चेदत्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नमानः स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः सदा स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा बाणरपुङ्गवः आबुभाषयाद मेधाभिः सत्त्वबाणप्लवकशभः रक्ष्यामि नगरं लङ्कां साट्टप्राहारधोरणं यत्यत्तमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः कारणानि च सर्वदा गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तत्पथनं श्रुत्वा लङ्का स कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं पपाशे परुषाक्षरं मामणिजत्यदुद्बुद्धेः राक्षसेश्वरपालिता न शक्यमत्यन्ने दे दृष्टं पुरीयं वानरातम तद स हर्षा तामुवाच निशाचरिं दृष्ट्वा पुरीमिमां दत्ते पुनर्यास्के यदा गतं तद कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयावहं तरेण वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता तद स कपिसा दुल्हो लङ्काय दाडितो कृशं रणनादसु महानादं विद्यमान् पवनात्मजः तद संवर्तयामास वामहस्तस्य स्वाङ्गुलीः मुष्टिना अभिजहानीनां हनुमान् घोरदमूर्छितः स्त्रीचेरिः मन्यमानेनः नादिक्रोधः स्वयं कृतः साधु देन प्रहारेण दिक्पलाक्षि निशाचरी अपाद सहसा भूमा विकृतारणदर्शनः ततस्तु हनुमान् प्राक्त्यस्तां दृष्ट्वा विनिपादितां कृपां चकार तेजस्वी वन्यमाणः स्त्रयं तुताम् अधो वैः प्रशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच अघर्विदं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्कमं प्रचीतः सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समय संज्ञ तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरीलङ्कः स्वयमेव प्लवङ्कम यज्दाहं त्वया विरह विक्रमेण महाबलः इदं च तथ्यं शृणु वै प्रवर्त्यामि हरीश्वर स्वयं भुवा पुरा दत्तं वरदानं यदा मम यदा त्वां पाणः कश्चित् विक्रामात् वसमानयेत् तदा त्वया हि विक्त्ययं रक्षसां वयमागतं स हि मे समयः संज्ञै प्राप्त अत्यदपदर्शनात् स्वयं विहितः सत्योन्न दस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राक्षस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसंशैव सर्वेषां विनाशः संवस्थितः तत् प्रविश्य हरिश्रेष्ठं तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विदस्व सर्वकार्याणि यानि यानि ह्य वाञ्छसि प्रदस्य चावोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभं राक्षसमुख्यपालितां तदृक्षया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यदा सुखम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्कादि देवता विजयो नाम तृतीय सर्गः श्री हरिये नमः श्री हरिः गोपिका जीवनस्मरण जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय இந்த ராமாயணம் சுந்தரகாண்டம் படித்தாவே அது டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படியே நாக்கு இனிக்கும் அவ்வளோ சுவையுடையது இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் படிக்க படிக்க சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்போ 4வது சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணலாம் 3 சர்க்கம் முடிச்சிட்டோம் 4வது சர்க்கம் சரி பாருங்க अथ 4th सर्गः लङ्कापुरी प्रवेशः स निजत्यपुरीं श्रेष्ठा लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेज हनुमान् कपिसत्तमः अत्वराणि महाबाहो प्राहारम् अभिपुप्लवे निशिं लङ्गम महासत्त्वः विवेशकविकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कविराजहितङ्करः चक्रेदपादं सव्यं च शत्रूणां सद्मूर्तने प्रविष्ट सत्त्वसम्पन्नो विषाय मार्तात्मजः स महापदम् आस्थायः मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्याम् अभिययौ कविः असिदत्तकृष्णनिनदैस्तूर्यं घोषपुरत्सरैः वज्राङ्कुश निकाशश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमुख्यैः पुरी रम्या पवासि गौरिवाम्बुदैः प्रजज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः सीताप्रसतुषैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्तमानगृहैश्चाभिः सर्पतः सुविभूषिता तां चित्रमाल्याभरणं कविराजहितङ्करः राघवत्वं चरण् श्रीमान् तदर्शच्च ननन्दच्च भवनात् भवनं कच्चन तदर्श भवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि हि भवनानि ततस्ततः शुश्राव मधुरं गीतमस्त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसंवृत्तानां दिवि चाप्सरसामिव स्वस्राव काञ्चीनिनदं नूपुराणं च निष्पणं स्वबाणनिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनम् आस्फोटित निनादांश्च स्फोटितांश्च ततस्ततः स्वस्राव जपदां तत्र मन्त्राणि रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याये निरतांश्चैव याददानां तदर्शसः
रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतः राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं राक्षसो बलं महत् तदर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जलिलान् मुण्टान् गो अजन अम्बरवाससः तत्त्वमुष्टिप्रहाराणान् अग्निगुण्डायुधांस्तदा गूढमुत्करपाणिंश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षान् एककर्णांश्च लम्बोदरवयोधरान् हराळन् वक्त्रांश्च विघटान् वामनांस्तदा तन्मिणः कर्किणस्तैवः सदग्निमुसलान् युधान् परिगोत्तम हस्तांशः विचित्र कवचोज्ज्वलान् नादिस्थूल नादिकृशान् नादितिर्का हरिहर्स्भगान् नादिगौरान् नादिकृष्णान् आदिगुब्जान् वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च स्वरूपांश्च सुवर्चसः पदागात्वजनश्चैव तदर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पटिशा अशनिदारिणः शेवनिपाशहस्तांश्च तदर्शश्च महाकविः शक्पिणस्ता अनुलिप्तांश्च पराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यदा स्फुरैकदान् बहून् दीक्षणशूलधरांश्चैव वज्रणश्च महाबलान् सदसहस्रमव्यक्रम् आरक्षं मध्यमं कविः रक्षो अधिपति निर्दिष्टं तदर्शान्धपुरक्रतः सततः तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाडकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातं मत्रिमुद्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकवदं साभिः परिगाभिः समावृतं प्राहरावृतम् अत्यन्तं तदर्शस्य महाकविः त्रिविष्टभनिभं दिव्यनाद विनादितं वाजहेषितसंदुष्टं नादितं भूषणैस्तदा तदैर्याणैर्विमानश्च ततः गजहयैः शुभैः वारणश्च चतुर्तन्तैः श्वेतप्रनिचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यर्याददानैः सहस्रशः राक्षसादिपतेर्गुप्तम् आविवेश गृहं कविः स हेम जाम्बूर्णतचक्रवालं महारमुक्तामणिभूषितान्तं परात्यकालाकरुचन्तनाक्तं स रावणान्तपुरम् आविवेश इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्कापुरी प्रवेशो नाम चतुर्थः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरिः जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोविका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद आंजनेय स्वामी की जय। அடுத்தது அஞ்சாவது சர்க்கம் பாருங்களா பஞ்சம சர்க்கः அத பஞ்சம சர்க்கः பவன விஜயः तदस्तमत्यं कदमं सुमन्तं ज्योत्स्नाविधानं महदुत्तमन्तं तदर्श धीमान् दिविबाणुमन्तं गोष्ठं पुरुषं भक्तमिव प्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेदयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं तदर्श सहितांसु मदाभियान्तं यावादि लक्ष्मीर्भवि मन्दरस्था तदा प्रदोषश्च सागरस्था तदेशतो येषश्च पुष्करस्था रजाजस्थ चारु निशाकरस्था हंसो यदा राजद पंजरस्थः सिंहो यदा मंदरकंदरस्थः वीरो यदा गद्भिदकुञ्जरस्थश्चन्द्र अभि अप्राज तदाम्बरस्थः सिदखगुत्पाणिपदीक्षशृङ्गो रजाजचन्द्र परिपूर्णशृङ्गः अस्तिव जाम्बूनदवत्तशृङ्गो रजाजचन्द्र परिपूर्णशृङ्गः विनष्ट सीताम्बु दुषारभङ्गो महाग्रहग्राह विनष्टभङ्गः महाग्रहग्राह विनष्टभङ्गः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलांगो रजाजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलादलं प्राप्य यदा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यदा गजेन्द्रः राज्यं समासाप्य यदा नरेन्द्रस्तदा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृत्तरक्षपिशिदासदोषः समाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्द्रेस्पणा कर्णसुगा प्रवृत्ता स्वपन्ति नाद्य पदिभिः सुवृत्ताः नक्तं सदाश्चापि तदा प्रवृत्ता विहर्तमत्यद्भुत रौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि तदास्पदवत्रासन संकुलानि वीरश्रयाचापि समाकुलानि ततस्स धीमंस कविकुलानि परस्परं चादि कमाक्षिपन्ति भुजं शबीनान् अधिविक्षिपन्ति मत्त प्रलापान् अधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यम् अधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि विकान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि विचित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापाणि च विक्षिपन्ति तदर्शकान्ताश्च समालभन्त्यस्तदा परस्तत्र पुनस्पवन्त्यः स्वरूपवक्त्राश्च तदा हसन्त्यः कृत्वा पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि
तदा नरद्भिः सुभुजिश्चापि तदा सुसद्भिः तदा च वीरश्च विनिस्वसद्भिर्हृदो भुजङ्गैरिव निस्वसद्भिः बुद्धिप्रदानान् रुचिरापि दानान् संस्कृतदानान् जगदप्रदानान् नानाविधानान् रुचिराभिदानान् तदर्श तस्यां पुरीयाददानान् अनन्तदृष्ट्वा च सदान् स्वरूपान् नानागुणान् आत्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स तदानुरूपान् तदर्श काश्चंश्च पुनर्विरूपान् तदो वरार्हा सुविशुद्धभावस्तेषां श्रेयस्तत्र महानुभावः प्रियेषु बाणेषु च सक्तभावः तदर्शधार इव सुप्रभावः श्रिया ज्वलन्ति स्त्रव्योपकूढा निशीतकाले रमणोपकूढः तदर्श काश्चित् प्रमुदोपकूढा यदा विहङ्गा कुसुमोपकूढः अन्या पुनर्हर्म्यदलोपविष्टस्तत्र प्रियङ्गेषु सुखोपविष्टः वर्तु प्रियाधर्मपरा निविष्ट तदर्श धीमान् मदनाभिविष्टः अप्रावृता काञ्चन राजवर्णः काञ्चित् परात्या स्तपनीयवर्णः पुनश्च काशिश्च लक्ष्मवर्णः कान्तप्रहीन रुचिराङ्गवर्णः तदप्रियां प्राप्य मनोभिरामाणं सुप्रीतियुक्तः प्रसमीक्ष्य रामाः गृहेषु हृष्ट परमाभिराम हरिप्रवीर स तदर्श रामाः चन्द्रप्रकाशश्च हि वक्त्रमालः वक्षाभिवक्ष्माश्च सुनेत्रमालः विभूषणानां च तदर्शमालः सदह्रदानाम् इव चारुमालाः नत्येव सीतां परमाभिजातां पदिं चिते साजकुले प्रजातां तदा प्रफुल्लामिव साधुजातां तदर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वत्मनि सन्निविष्टां रामेक्षणां तां मदनाभिविष्टां वर्तुर्मणश्री मदन प्रविष्टां श्रीभ्यो वराभ्यश्च सदा विशिष्टां उष्णातिदाम साण श्रुतास्रगण्डीं पुरा वरार्होत्तम निष्कगण्डीं सुदादपक्ष्माम् अविरक्तगण्डीं वने प्रवृत्तामिव नीलगण्डीं अव्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां पंसु प्रदिक्तामिव हेमरेखां शतप्रवृढामिव बाणरेखां वायुप्रपीन्नामिव मेघरेखां सीतम् अपश्यन् मनुजस्परस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखाभिहतश्चरस्य प्लवङ्कमो मन्द इवाचरस्य इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे भवनविषयो नाम पंचम सर्गः। श्री हरिये नमः। जय जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम। गोपिका स्मरण गोविंदा गोविंदा। श्री स्वामी की जय। आराध सर्गम षष्ठ सर्गः। रावण गृहापेक्षणं स निखामं विमानेषु विषण्णः रामरूपदृक् यशचार पुनर्लङ्कं राघवेन समन्वितः आससादात लक्ष्मीपद राक्षसेन्द्र निवेशनं पराकारेण अर्कवर्णेन भास्करेण अभिसंवृतं रक्षितं राक्षसेर्भीमहि सिंहैरिव महत्पणं समीक्षमाणो भवनं चकाश कविकुञ्चरः प्रोप्य गोपहितश्चित्रैर्धोरणैर्हेमभूषितैः विचित्राभिश्च वक्ष्याभिर्द्वारश्च रुचिरैर्वृतं गजास्थितिर्महामात्रैः स्वरश्च विगतश्रवैः उपस्थितं संहार्यै हयैः स्यन्दनायिभिः सिंहव्याघ्रतणत्राणिर्तान्तकाञ्चन राजतैः कोशवद्भिर्विचित्रश्च सदा विरचितं हृदैः बहुरत्नसमाकीर्णं परात्यासनभाजनं महारथं समाभासं महारथ महास्पणं तस्यश्च परमोदारैस्तैस्तः मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनिधिरन्धबालश्च रक्षभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसंहृतैः समुद्रस्फणनिस्फणं तत्राजगुणसम्पन्नं मुख्यश्च वरचन्तनैः महाजनैः समाकीर्णं सिंहैरिव महत्पणं वेरिमृदङ्गाविरुदं सङ्घघोषविनादिदं नित्याच्युतं बर्बहुदं पूर्जितं राक्षसे सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रमिव निस्फणं महात्मनो महत्प्यस्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं तदस्य च महाकविः विराजमानं बभुषा अजास्परदसङ्कुलं लङ्काभरणम् इत्येवः स्वामन्यत महाकविः चचार हनुमस्तत्र रावणस्य समीपतः बृहद्गृहं राक्षसाणाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो क्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अपप्रत्य महावेगप्रहस्तस्य निवेशनं ततो अन्यत् प्रप्लवे वेश्मः महापार्श्वस्य वीर्यवान्
अदमेकप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तदा पप्लवेत्स महाकविः महोदरस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रदंशस्य च तदा पप्लवेत्स महाकविः सुगस्य च महावेग सारणस्य च धीमतः तदा चेन्द्रजितो वेश्मः जगाम हरियूतपः जम्बुमालः सुमालश्च जगाम भवनं ततः तस्मिकेतश्च भवनं सूर्यशत्रुस्तथैव च वज्रकायश्च तदा पप्लवेत्स महाकविः धूम्राक्षस्य च सम्पादेर्भवनं मार्दात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य गणस्य गणस्य च सुगणस्य चक्रस्य षडस्य गणस्य च रश्मकर्णस्य दंशस्य सोमसस्य च रक्षसः व्युत्तन्मत्तस्य मत्तस्य त्वजक्रीपस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वेन्द्रजिह्वाणां तदा ह्यस्तिमुखस्य च करलस्य पिशाचस्य शोणिदक्षस्य चैव हि कर्ममाणः क्रमेणैव हनुमान् मार्दात्मजः देश देशु महार्केषु भवनेषु महायशः तेषां मृत्युमदां मृत्युं तदर्शश्च महाकविः सर्वेषां समधिक्रम्यः भवनानि समन्ततः आससादाद लक्ष्मीमाण राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्य उपशायिन्यो तदर्श हरिसत्तमः विचरण हरिसादोलो राक्षसी विकृते क्षणाः सोलमुत्करहस्तास्त्यः शक्तितोमरधारिणिः तदर्श विविधानि गुल्मांस तस्य रक्षपदेर्गृहे राक्षसां च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यदान् रक्तान् स्वेदान् सिदांश्चाभिः हरितां च महाजवान् पुलिनान् रूपसम्पन्नान् गजान् पदकजारुजान् निष्ठितान् गजशिक्षायाम् ऐरावद समान युधि निघन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ततः शरदश्च यदा मेघान् शबदश्च यदा गिरिं मेघस्थलितनिर्घोषान् दुर्दर्शन् समरे परैः सहर्षम वाहिनीस्तत्र जाम्बूनद परिष्कृताः ततश्च राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशनः शिबिकः विविधाकारः स कविर्मारुदात्मजः हेमजालपरिच्छन्न तरुणादित्य सर्वज्ञसः लतागृहाणि विचित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानवी कामस्य गृहं रम्यं दिवागृहम् एव च ततश्च राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशनः स मन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं पदयष्टिभिर् आगीर्णं तत्र सह भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्ख्यनं निधिजालसमावृतं धीरनिष्ठितं कर्मान्तं गृहं भूतपतेरिव अर्चिभिश्चाभिरत्नानं तेजसा रावणस्य च पदराजाद तत्पश्मः रश्मिमानिव रश्मिभिः जाम्बुनदं मयान्येव शयनानि आसनानि च भाजनानि च सुप्राणि तदर्श हरियूतपः मत्पाशवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरमम् असंवादं कुबेरभवनं यतः नूपुराणं च घोषेण काञ्चनां निनदेन च मृदङ्गतलघोषश्च घोषपद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्गादयुधं श्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यडकक्ष्यं हनुमान् प्रवेश महागृहम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे रावणगृहापेक्षणं नाम षष्ठसर्गः। श्री हरिये नमः शर्मः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। विषय स्वामी की जय। ஏழாவது சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணலாம். அது சப்தம சர்க்கः புஷ்பமான தர்சனம். புஷ்பமானம் பற்றி வர்ணனை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். புஷ்பமானத்தை பார்க்குற தர்சனம். அடுத்த சர்க்கம் வந்து புஷ்பமானத்தை பற்றி ஃபுல்லாக வர்ணனை அருமையாக இருக்கும். சப்தம சர்க்கः புஷ்பக தர்சனம் सवेश्मजालं बलवान् तदर्श व्यासक्तवैदुर्य सुवर्णजालं यदा महत्प्रावृषि मेघजालं विद्युद्विनत्तं स विहङ्गजालं निवेशनानां विविधास्त्रशालः प्रधानसङ्गायुध चापशालः मनोहरश्चापि पुनर्विशालः तदर्श वेश्मात्रिषु चन्द्रशालः गृहाणि नाना वसुराजितानि देवासुरश्चापि सुपूजितानि सर्वैश्च दोषैः परिवर्जितानि कवितदर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नापि समाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीदले सर्वगुणोत्तराणि तदर्श लङ्काधिपतेर्गृहाणि तदर्शोच्युत मेघरूपं मनोहरं काञ्चन चारुरूपं रक्षाधिपस्यात्म वडानुरूपं गृहोत्तमं च प्रतिरूपरूपं महीदले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रिया ज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानातरुणं कुसुमापकीर्णं गिरि इवाक्रम रजसापकीर्णं नारीप्रभैर्इव दीप्यमानं तदिर्भिरस्पुम्बोध वदच्यमानं हंसप्रभैरिव बाह्यमानं श्रियायुधं के सुखदां विमानं यदा नखक्रं बहुधादिचित्रं यदा नभश्च गृहचन्द्रचित्रं तदर्श युक्तिकृतं मेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं
महीकृता पर्वतराजपूर्णा शैलाकृता वृक्षविधानपूर्णा वृक्षाकृता पुष्पविधानपूर्णा पुष्पं कृतं केसरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डराणि तदा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि छत्राणि तदा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाभिश्च विघूर्णमाणं वेश्मोत्तमानाम् अभिचोच्यमानं महाकविस्तत्र महाविमानं कृताश्च वैदुर्यमया विहङ्गः रूप्यप्रवालश्च यदा विहङ्गः चित्रश्च नाना वसुभिर्भुजङ्गः जात्यानुरूपस्तु दुर्गा शुभाङ्गः प्रवालजाम्बूनद पुष्पवक्षः सलिलम् आवर्जितं जिह्मवक्षः कामस्य साक्षादिव बान्धिपक्षः कृता विहङ्गः सुमुखा सुपक्षः नियुज्यमानस्तु गजः सुखस्तः सुकेसराश्चोत्पल पत्रहस्तः बभूवदेवी च कृता सुखस्तः लक्ष्मीस्तदा पत्नीहस्तः यदि तद् गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नखमिव चारुशोभनं वनस्य तत्र परमसुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नखमिव चारुगन्धरं ततः सदां अभिवत्य भोजतां चरन्पुरीं दशमुखं बाहुबालिदाम् अदृश्यतां जनकसुतां सुभोजितां सुदुःखितः पदिगुणवेखनिर्जितां ततस्तदा बहुविधभाविदात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः आवस्क्यतो अभवत् अधिदुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरदो महात्मनः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकदर्शनं नाम सप्तमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोविंद 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 आंजनेय स्वामी की जय। இப்போ புஷ்பமானத்தை பற்றி வர்ணனை 8வது சர்க்கம் படிக்கிறோம். अष्टम सर्गः पुष्पकाणवर्णनं सदस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महत्विमानं बहुरत्नविचित्रितं प्रदत्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं तदस्य वीरपवनात्मजः अभिः तमप्रमेय अप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं सात्विधि विश्वकर्मणा दिवं कदं वायुपदे प्रतिष्ठितं जजाजदादित्यपदस्य लक्ष्मणवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतः न तत्र किञ्चिन्न महार्करत्नवत् न ते विशेषः नियतः सुरेष्वभिः न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तव समाधानपराक्रमार्जितं मनसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनं मनसमादाय तु शीघ्रकामिनं दुरावरं मारुततुल्यकामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महत्तिनां यशस्विनाम् अक्रियम् उदां इवालयम् विशेषमालम्त्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटं मण्डितं मनोविरामं सरदिन्तु निर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यतः वहन्ति यं कुण्डलशोभितारणः महाशनः व्योमचरः विशाचरः निवृत्तविध्वस्त विशाललोचनः महाजवाभूतखणासकर्षः वसन्तपुष्पोत्कर चारुदर्शनं वसन्तमासादवि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं तदर्श तद्वानरवीरसत्तमः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम 8मः सर्गः। श्री हरे नमः शर्मः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम गोविगा जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद आंजनेय स्वामी की जय। 9வது சர்க்கம் சங்குல அந்தபுரத்தில் பிரவேசிக்கிறாரு. அந்த வர்ணனை அப்படியே பார்க்கலாம். அந்த லங்கி ஃபுல்லாக வர்ணனை தான் அப்படியே பார்க்கலாம். 9मः सर्गः अथ 9मः सर्गः सङ्कुलान्तपुरं तस्यालय वरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायदं तदर्श भवनश्रेष्ठः हनुमान् मार्दात्मजः अर्थयोजनविस्तीर्णम् आयदं नियोजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमाणस्थ वैदेह्यं सीताम् आयुधलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान् हरिसूदनः उत्तम राक्षसावासं हनुमान् अवलोकयन् वाससादात् लक्ष्मीबाण राक्षसेन्द्रनिवेशनं चतुर्विषाणैर्त्वरदैः स्त्रीविषाणैस्तथैव च परिक्षिप्तम् असंवादं रक्ष्यमाणम् उदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृदाभिश्च विक्रम्यः राजकन्याभिरावृतं तं नक्रमहरागिर्नं तिमिङ्गलजशाकुलं वायवेगसमादुतं पन्नगिरिव सागरं याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्याः चन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेव अणवायिनी या च रक्तः कुबेरस्य यमस्य वर्णस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा वृत्ति रक्षोगृहेष्विह
तस्य हर्म्यस्य मत्यस्तं वेश्मचान्यत् सुविनिर्मितं बहुनिर्योः संकीर्णं ततश्च पवनात्मजः ब्राह्मणार्थे कृतं दिव्यं दिवि यत् विश्वकर्मणा विमानपुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा देवः यत् कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसः जित्वा देवः तत्राक्षसेश्वरः इहामृगसमायुक्तः कातस्पर हिरण्मयः सुकृतैराचितं स्तम्भः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरमन्दिरसङ्घासुर आलिकत्वरिवाम्बरं गूढगारः शुभागारः सर्पतः समलङ्कृतं जलनार्कप्रदिकाशम सुकृतं विश्वकर्मणः हेम सोपानसंयुक्तं चारुप्रभरवेदिकं जालवादायनिर्युक्तं काञ्चनः स्फाटिकैरपि इन्द्रनील महानील महनिप्रभरवेदिकं वित्रमेण विचित्रेण मणिभिश्च महादलैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनापि विराजितं चन्द्रेण च रक्तेन दवनीयनिभेन च सुपुण्यगन्तिनः युक्तमादित्यं तरुणोपमं विमानपुष्पकं दिव्यमारुरोह महाकविः ततः कन्तं बाणभक्ष्यान्न संभवं दिव्यं संवर्चितं जकृत् रूपवन्तं युवानिलं सगन्धस्थं महासत्वं बन्धुमिं युवोत्तमम् इद येहित्युवाचेव यत्र तत्र यत्र स रावणः ततस्तं प्रस्थितः शालं तदर्श महतीं शुभां रावणस्य मनःकान्तं शान्तां विवह वरस्त्रयं मणिशोभान विकृतां हेमजाल विराजितां स्फाटिकैरावृतदलां तन्तान्तरिदरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालश्च रूप्यचामिकरैरभिः विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समेर रुजुभिरच्युच्चैः समन्तात्सु विभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवाच्युच्चै दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्यः कुदयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्गया पृथिवीमिव विस्तृतं सराष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तभैकैर्दिव्यगन्धादिवासितां परत्यस्तरणो भेदां रक्षो अधिपय निषेवितां धूम्राम् अघरुधूपेन विमणं हंसपाण्डरां चित्रं पुष्पोपहारेण कल्माषिमिव सुप्रभां मनःसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तांशोगणाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीं इव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैश्च पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास महादेवः तदा रावणबालिदः स्वर्ग अयं देवलोहो अयम् इन्द्रस्यैवं पुरी भवेत् सिद्धिर्व्ययं परा हि स्यादित्यमन्यतः पार्थिः प्रत्यायित इवापश्यत् प्रतिभांस्तत्र काञ्चनान् दुर्दानिव महाद्युतिरे देवनेनः पराजितान् दीपानं च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च आच्यविर्भूषणानां च प्रदीप्तेन वा आप्यमन्यत तदा पश्यत् पुदासीनं नानावर्णाम्बरसजं सहस्रम्बरनारिणं नानावेशविभूषितं परिवृत्तिः हस्तरात्रिस्तु पाणिनित्रापसंगतं क्रीडित्वपरदं रात्रोः सुप्रसुप्तं बलवत् तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचेः निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्द हंसप्रमरं यदा प्रथमवणं महत् दासां संवृततन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत् पद्मकन्तिनिः वदनानि सुयोषितां प्रवृत्तानि पद्मानि दासां भूत्वा सवाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव पपुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्षट्पदाः अम्बुजानीव पुल्लानि प्राप्तयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यतः श्रीमान् उपबोध्य महाकविः मेनिः गुणदस्तानि समानिः सरलोद्भवैः सादस्य शुचिभिः सालः दाभिः स्त्रीभिर्विराजिता सारदीव प्रसन्नात्यस्तु दाराभिरभि शोभिता सचः दाभिः परिवृतः शुशुभिः राक्षसादिपः यदा षुडुपतिः श्रीमांस दाराभिरभिसंवृतः याश्च्यवन्ते अम्बरात्तारः पुण्यशेषसमावृतः यमस्तः सङ्गतः कृष्टः इति मेनः हरिस्ततः दाराणामिव सुव्यक्तं महदिनं सुपार्चिष्टां प्रभः वर्णप्रसादास्तः विरजस्तत्र व्यवसितां व्यावृतकचपीनस्रक् प्रहिर्नवरभूषणाः बाणव्यायाम् अहालेषु यत्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततलगः काश्चित् उत्प्रान्तनूपुराः पार्श्वे गणितहारश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्तहारावृताश्चान्यः काश्चित् विश्वस्तवाससः
व्यावित रसनादामाः केशोद्यः इव वाहितः अकुण्डलधराश्चान्यः वृश्चिन्नं मृदितस्रजः गजेन्द्रमृदितः पुल्लः रथः इव महावनेः चन्द्रांशुकिरणावाश्च हारः कानसां चिदुत्कटः हंस इव पपुः सुप्तः स्तनमत्येषु विवशिताम् अपरासां च वैदुर्यः कादम्बः इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासं चक्रवाकः इव भवन् हंसकारण्डवाकीर्णः चक्रवाकोपशोभितः आवकः इव रेजुः चकणिः पुलिनैरिव किङ्किणिजालसङ्काशस्ताः हेम विपुलाम्बुजाः भावग्रहः यशस्थिरः सुप्तदत्यः इव बभुः मृदुषु अङ्गेषु कासंचित् कुचक्रेषु च संस्थिताः अभूर्भूषणानीव शुभः भूषणराजयः हंसकान्तश्च कासंचिन् मुखमारुतकम्बिताः उपद्युपरि वक्त्राणं व्यादीयन्ते पुनः पुनः पदाकः इवोत्तुदः पत्तिना रुचिरप्रभाः नानावर्णः सुवर्णानम वक्त्रमूलेषु जयज्रेः कबल्कुश्चात्र कासंचित् कुण्डलानि सुवार्चिषां मुखमारुतसम्पर्कात् बन्तमन्तं सुयोषितां सर्गरासभगन्धैश्च प्रहृत्यः सुरभिः सुखः दासं मदननिःश्वासः शिशेभिः रावणं ततः रावणाननसङ्काश्चः काश्चित् रावणयोषितः मुखानि स्मः सपत्नीनाम् उपाजिक्रन् पुनः पुनः अत्यत्तं रक्तमनसो रावणतापरस्त्रियः अश्वतन्त्रः सपत्नीनां प्रियम् एव आचरंस्तदा बाहुन् उपनिदायान्य पारिहार्य विभूषितान् अंशकानि च रंजानिः प्रमदस्तत्र शिष्यते अन्यवक्षसि चान्यस्यास्य काश्चित् पुनर्भुजम् अवरत्वङ्गम् अन्यस्याप्यवर भुजौ पूर्वस्वे गडिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्पर निविष्टाङ्ग्यो मदस्नेह वशानुगाः अन्योन्यस्य अङ्गसंस्पर्शात् प्रियमाणाः सुमत्यमाः एके कृतभुजाः सर्वः सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यं भुज सूत्रेण स्त्रीमाणा कथिता हि सा मालेव कथिता सूत्रे शुशुभिः वत्षट्पदा रदानां माधवे मासी रदानां माधवे मासी पुल्लाणं वायुसेन सेवनात् अन्योन्यमालगदितम संसक्तकुसुमोच्चर्यं व्यधिवेष्टितं सुस्कन्दम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीत्पणं विभोत्तुदम श्रीवणं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न दासां योषितां तदा विवेकसख्यः आददम पुषणाङ्गा अम्बरसृजां रावणेः सुखसंवेष्टं दास्त्रियोः विविधप्रभाः ज्वलन्तकाञ्चनः दीपः प्रेक्षन्ता निमिषो इव राजर्षिभिः देव दैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन दा सर्वः रावणेन हृदा स्त्रियः सर्वदा मदनेनैव मोहितः काश्चित् आगताः न तत्र काश्चित् प्रमदा प्रसख्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लप्ताः न चान्यकामानि च चान्यपूर्वा विना वरार्हं जनकात्मजां मद्दाम् न चाकुलिना न च हीनरूपा नादक्षिणा नानु उपचारयुक्ता बाजाभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चाभिकन्तस्य न कामनीया अभुवबुद्ध्यस्तु हरिस्परस्य यतितृषि राघवधर्मपत्नी इमा यदा राक्षसराजबाद्यः सुजातमस्त्येति हि साधुबुद्धेः पुनश्च स्व अचिन्तयत् आत्मरूपो ध्रुवं निर्विशिष्ट गुणदो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मः लङ्केश्वरः कष्टम् अनाद्यकर्म इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे संकुलान्तपुरं नाम नवमः सर्गः श्री हरेन्वशर्मः जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम गोविंद स्मरण गोविंद गोविंद आंजनेय स्वामी की जय 10வது सर्गम 10వ सर्गः मंदोदरी दर्शनम मंदोदरी அப்படிப்பட்ட மகாபதிவிரத அந்த அம்மாவுக்கு தான் பகவான் சங்கச்சக்கர கதாதாரியா ராமர் காட்சி கொடுத்தார். அது 10వ सर्गः मंदोदरी दर्शनम तत्र दिव्योपम मुख्यम स्फाटिकम रत्नभूषितम अपेक्षमाणो हनुमान तदर्श शयनासनम तान्तकाञ्चन विचित्रांगिर वैदुर्यश्च वरासनैः महार्कस्तरणो भेदिर उपवन्नम महाधनैः तस्य चैकतमं दैगचैकतमे देशे स्व अक्रियं
माला विभूषितं तदर्श पाण्डरं छत्रं दाराधिपति सन्निपं जातरूप परीक्षितं चित्रबाणं समप्रभम् अशोकमाला विततं तदर्श परमासनं बाणव्यजन हस्ताभिर्विद्यमानं समन्ततः गन्धस्य विविध दृष्टं परदूपेन दूपितं परमस्तरणास्तीर्णम् आविकाचिनं संवृतं तामिभिर्वरमाल्यानां समन्तात् उपशोभितं तस्मिन् जीमूत सङ्कासं प्रदित्तोत्तम सकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजितवाससं लोहितेन अनुलिप्ताङ्गं चन्तनेन सुगन्तिनः सन्त्यारक्तं युवाकाशे द्वयतम स दलिद्गणं मृदम् आभरणे दिव्यः स्वरूपं कामरूपिणं स वृक्षवणगुल्माट्यं प्रसुप्तमिव मन्त्रं क्रीडित्ववरदं रात्रः वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानं राक्षसाणां सुखावहम् विद्वाप्युपरदं चापि ततः सत्स महाकविः भास्करः शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं यस्वसन्तं यदा राघं रावणं वानरशभः आसत्यः परमोत्विक्तः स्व अभासर्बत् सुवीतवत् अदारोहणमासत्यः वेदिकान्तरम् आश्रितः शिवं राक्षसरसादोल्यं प्रेक्षते स्म महाकविः स्वशभिः राक्षसेन्द्रस्य स्वपदः शयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टः यदा प्रश्रवणं महत् काञ्चनाङ्गद नत्व च तदसत्स महात्मनः विक्षिप्तः राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रुत्वजोपमौ ऐरावत विषाणक्रैर् आविडन कृतकृवणौ वज्रोल्लिखित पीणांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनः समसुजातांसौ सङ्गतः बलसंयुतौ स्वलक्षण गङ्गुष्टौ नखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ सांहदौ परिघागारोः वृत्तः खरिकरोपमौ वेक्षत्व शयने सुप्रहे पञ्चशीर्षा विभौरगौ सशक्षतज कल्पिनः सुशीदेनः सुकन्तिना चान्तनेनः परात्यनः स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्री विमृदितौ गन्धोत्तम निषेवितौ यक्षपण्णक गन्धर्व देवदानवराविनौ तदस्य स कविस्तस्य बाहु शयन संस्थितः मन्दरस्यान्तरे स्युक्तः महाहि ऋषिदाविव दाप्यां स परिपूर्णाप्यां भुजाप्यां राक्षसेश्वरः शुशुभेः अचलसङ्काशः शृङ्गाप्यामिव मन्तरः चूरपुन्नाकसुरभिः बहुलोत्तमसंयुतः पृष्टान्नरससंयुक्तः पाणगन्धपुरत्सरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राम महामुखाद् शयानस्य विनिश्वास पूरयन्निव तद्गृहं मुक्तामणिविचित्राणि काञ्चनेन विराजितं मुकुटेन अववृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिदाननं रक्तचन्द्रदिक्तेन तदाहारेण शोभिना पीनायत विशालेनः रक्षसा विराजितं पाण्डरेण अभिवित्तेन क्षौमिणः शतचक्षणं महार्केण सुसंवीदं पीदेन उत्तम वासराशि प्रतीकाशम निस्पसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति चोयान्तेः प्रसुप्तमिव गुञ्चरं चतुर्भिः काञ्चने दीप्यमान चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघः विद्युद्गणैरिव पादमूल गदाश्चान्यः ततर्स सुमहात्मनः सपत्निश्च प्रियबाध्यस्य दस्य रक्षपदे गृहे शशिप्रकाशवदनश्चारुकुण्डलभूषितः अम्लानमाल्य आभरणः ततः स हरियूदपः वृत्तवादित्रकुशलः राक्षसेन्द्र भुजाङ्गगाः वरावरणतारिण्योः निषन्ना ततृषे हरिः वज्रवैदुर्यगर्भाणि श्रवणन्तेषु योषितां ततर्स दापणीयानि कुण्डलानि अङ्गदानि च दासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः यजराजः विमानं तन् नभस्ताराकणैरिव मदव्यायाम् अहिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्योषितः देश अवकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमुत्यमाः अङ्गहारस्तदैवान्या कोमलिर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभ सर्वाङ्गी प्रसुप्तवरवर्णिनी काचित् वीणां परिष्वज्जः प्रसुप्ता सम्प्रकाशदेः महान् अधिप्रकीर्णेव नलिनी बोधमाश्रिता अन्यकक्षगदेनैव
मट्टुकेन असिदेक्षण प्रसुप्तभामिनिः मादिः बालपुत्रेव वत्सला पडकं चारु सर्वांगी पेट्यः सेतः सुभस्तनि शिरस्य रमणं लप्त्वः परिष्वज्येव भामिनी काचित् वंशम परिष्वज्यः सुप्तः कमललोचनः रखप्रियदमं गृह्यः सकामेव च कामिनी विवञ्चं परिगृह्यान्यः नियता नृत्तसारिणी यत्रावसम् अनुप्राप्तः सहकान्तेव भामिनी अन्य कणकसङ्कासैर्मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गपरिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजबाष्पान्तरस्तेन रक्षकेन सुसोदरी पणवेलः सहानिन्त्यः सुप्तः मदकृतश्रमाः दिण्डिमं परिगृह्यान्यः तदैव आसक्तदिण्डिमा प्रसुप्ता धरणम वत्सम उपगुह्येव भामिनी काचित् आडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्तः मदमोहिता कळसिम अभिविद्यान्य प्रसुप्तपादि भामिनिः वसन्तिः पुष्पसबला मालेव परिमार्जितां पाणिप्यं च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता नेत्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्तु सतुसारणा अन्याम् आलिङ्क्य शुश्रणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आदत्यानि विचित्राणि हि परिष्वज्यापरः स्त्रियः निविद्य च कुचैः सुप्तः कामिन्यः कामुकानिव दासां एकान्तविन्यस्ते शयानं शयने शुभे ततस्य रूपसम्पन्नाम् अवरां स कविस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीम् इव तत् संश्रयः भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टाम् अन्धपुरेश्वरीं कविर्मन्दोदरीं गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टाम् अन्धपुरेश्वरीं कविर्मन्दोदरीं तत्र शयानं चारुरूपिणीं सदामदृष्टः महाबाहुर्विभूषितां मारुतध्वजः दर्शयामास सीदेदि रूपयौवनसम्पदा अश्रेण महदा युक्तननन्तहर्यूतपः आस्फोटयामास सुचुम्बपुच्छं ननन्तचिक्रीड जगौ जगाम स्तम्भान् आरोहन् निपपादभूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कवीनाम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे मन्दोदरी दर्शनं नाम दशमः सर्गः श्री हरे नमः जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम இப்படிப்பட்ட துஷ்டனு கூட எப்படிப்பட்ட பதிவிரதை அப்படிப்பட்ட जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम गोपी अर्जुन स्मरण गोविंदा गोविंदा आंजनेय स्वामी की जय அப்படிப்பட்ட துஷ்டனாய ராவணனுக்கு அப்படிப்பட்ட பதிவிரதை அவ்வளவு அழகுடையவளாக அப்படிப்பட்ட மகா பதிவிரதையாக அந்தமா பார்த்து சேதினே நினச்சிட்டாரு ஆஞ்சநேய சுவாமி ராம 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 சரி இப்போ வந்து இந்த சர்க்கத்தோடு கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் விராமம் பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் பாராயணம் பண்ணலாம் ராம 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 ராம